ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز طالب علم دوستو، دورہ تحقیق المسائل 2018 کے شرکاء اور سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج جس عنوان پر میں گفتگو کرنے لگا ہوں یہ ہے صفت حاضر و ناظر خاصہ خداوندی. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، نظریہ، موقف، مسلک اور رائے یہ ہے کہ اللہ رب العزت پوری کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہیں. ہر وقت، ہر جگہ، ہر کسی کو دیکھنا، ہر کسی کے پاس ہونا، ہر کسی کے قریب ہونا، یہ خاصہ اللہ رب العزت کا ہے. بس اللہ جسم سے پاک ہیں، جان سے پاک ہیں، اور اللہ بلا جسم ہر جگہ ہے. وہ کیسے ہیں؟ ہماری عقل مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. مخلوق کے اندر دم نہیں ہے کہ وہ خالق کا ادراک کر سکے. مخلوق کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ خالق کی حقیقت کو بھانپ سکے. مخلوق کے صلاحیت کی بات نہیں ہے کہ وہ خالق کے معاملات کو جان سکے. لہٰذا اللہ ہے، بلا جسم ہے، ہر جگہ ہے، ہر مکان میں ہے، ہر کسی کے قریب ہے، ہر کسی کے پاس ہے. تو اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہاں پہ لفظ سنا ہے خاصہ خداوندی، یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. خاصے کا معنی یہ ہے جو صرف ایک میں ہو. یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ کا آسان ترجمہ کہیں گے صرف ایک میں ہو، کسی اور میں نہ ہو. اس کے مقابلے میں اہل بدعت موجودہ رضا خانیت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تو اللہ کے اولیاء بھی، اللہ کے انبیاء بھی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں، ہر کسی کی معلومات کو جانتے ہیں اور ہر بندے کے معاملات کو سمجھتے ہیں، ہر کسی کے پاس ہیں. بلکہ یہ نظریہ جاتے جاتے اس نتیجے پر پہنچا ہے جس نتیجے کو بندہ گستاخی کا معاملہ کہنے لگ جائے. جانوروں تک کے بھی اس علم کے وہ لوگ قائل ہو گئے ہیں. عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار پر کلفٹن میں موجود تھا. اس کے قریب مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کی قبر ہے. مجھے اس قبر پہ جانے کا اتفاق ہوا تو ایک چھوٹی سی بلی بیٹھی تھی. جیسے عادت ہے، فطرت ہے، ہم بلی کو ایسے بھگاتے ہیں، کیسی ہو، یعنی ایسے کر کے بھگانے کے لیے. مجھے تو نہیں پتا وہ محترمہ بلی صاحبہ تھی نا، تو بعد میں سمجھ آیا. انہوں نے مجھے کہا نا نا نا، پیر کی بلیوں کو نہیں بھگایا جاتا، یہ بھی علم غیب جانتی ہیں. یہ میرا مشاہدہ ہے، یہ میں آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں، کوئی تھیوری پیش نہیں کر رہا، کسی کی کارگزاری آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا. اسے نہیں بھگانا چاہیے، یہ عالم الغیب ہے، یہ بھی علم غیب جانتی ہے. جب بلی بھی علم غیب جاننے لگ جائے، ابھی بھی نعوذ باللہ سیدنا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرتے ان احباب کو تھوڑی سی عقل بھی نہیں آتی کہ ہمیں کہتے ہیں کہ اس نے کہا ہے جانوروں جیسا علوم ہے. حالانکہ حضرت تھانوی اس الزام سے مبرہ ہیں، بری ہیں، پاک ہیں، دور سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایک حدیث پاک کے مطابق اس بات پوری کر کے میں موضوع شروع کر رہا ہوں. من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اعلان فرمایا ہے، اے پیغمبر کہہ دیں اللہ فرماتے ہیں جو میرے دوست سے دشمنی رکھے گا میں اس بندے کے لیے اعلان جنگ کر رہا ہوں. اور آپ کو جنگ کے اصول بخوبی معلوم ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے ہر دو فریق کے درمیان، پہلا فریق چاہتا ہے میں دوسرے کی اعلیٰ چیز پر ضرب لگاؤں، جو دوسرے کے اندر سب سے اچھی چیز موجود ہو اس پر ضرب لگاؤں.
इसलिए पहली ज़रब या आंखों पर फायर किया जाता है, या उसके कनपट्टी पर और उसके माथे के ऊपर फायर किया जाता है, वो उसकी आला चीज पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक फरमाया, मन आदा ली वलियन, मेरे दोस्त से अगर तुमने दुश्मनी और बोझ रखना शुरू कर दिया, फकद अज़नतुहु बिल हर्ब, मैं जंग का ऐलान कर रहा हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जब जंग का ऐलान हुआ है तो सामने वाले के मुताबिक जो उसकी आला चीज है वही खत्म करेंगे। इंसान के जिस्म में आला चीज ये ज़हनियत है, अकल है, सोच और फिक्र है, जिसे फिक्र पारसा कहते हैं, समझना है, इदराक अकल है। क्योंकि बंदा कितना अच्छा लिबास न पहन ले, कितना अच्छा खाना न खा ले, कितनी अच्छी तरीके पे दौलत न कमा ले, जब तक इसमें अकल मौजूद नहीं होगी लोग इससे प्यार नहीं करेंगे। जब तक इसमें अकल मौजूद नहीं होगी दुनिया इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होगी। अगर अपनी तरफ इसने दुनिया को मुतवज्जे करना है, वो लिबास अच्छा हो या ना अच्छा हो, खुराक अच्छी हो या अच्छी ना हो, इसके पास दौलत वाफिर हो या ना हो, इसका दिमाग अच्छा हो तो लोगों के कुलूब मुतवज्जे हो जाते हैं, अज़हान मुतवज्जे हो जाते हैं, लोगों की फिक्रें मुतवज्जे हो जाती हैं। तो अकल आला चीज है। अल्लाह का जब मुकाबिल में ये आया तो अल्लाह ने इसकी अकल को माफ कर दिया, अल्लाह ने इसकी अकल को खत्म कर दिया। जो एतराज या हज़रत थानवी पर कर रहा था वो पीर की बिल्ली के लिए इल्म गैब मानकर अपने लिए एतराज कर बैठा, इसे कहते हैं फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। जो उसके साथ था ना वही अपने घर में साबित हो गया है। तो ये अल्लाह के वली के साथ, अल्लाह के वली के साथ जितना बोझ रखेंगे उतना ही फिर अल्लाह निकालता है, फिर वो निकालते हैं, फिर वो मामला सामने आ जाता है। मैं हैरान हूँ, रजा खानियत ने अकाबरीन उलमा देवबंद पर कुफर के फतवों की मशीन चला दी थी। उस वक्त हजरत मौलाना ज़फ़र अली खान, अल्लाह इसकी कब्र पर करोड़ों अरबों रहमत नाजिल फरमाए। कभी गुजरावाला वजीराबाद जाकर इनकी कब्र पर फातिहा भी पढ़ाया करो। उन्होंने बड़ा अजीब जुमला फरमाया था कि बरेली के फतवों का सस्ता है भाव, मिलते हैं कोड़ी के अब तीन तीन, कोड़ी कहते हैं टके को जो उस जमाने के था, मिलते हैं कोड़ी के अब तीन तीन, खुदा ने ये कहकर उन्हें ढील दी, व उमली लहुम इन कैदी मतीन। तो फिर वही हुआ, इन्होंने इन पर कुफर का फतवा दिया। अकाबरीन उलमा देवबंद की जिंदा करामत यह है, आज रजा खानियत की मिल्लत में कोई दो, कोई तीन, शायद दो और तीन में सखावत कर रहा हो, कोई एक अथेंटिक मौलवी इनमें नहीं मिलेगा जिस पर सबका इत्तेफाक हो। किसी न किसी ने कुफर का फतवा दे रखा है। आप दस्तो गुरेबा की 4 जिल्दों को मुतालिया करें, मौलाना कादरी ने इनके बखे उधेड़ के रख दिए हैं, इनके घरों में वो मामला सामने रख दिया है कि आपके पास कोई 2-3 एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिस पर सबका इत्तेफाक हो। अगर एक बंदा इसे मौलवी मानते तो 2 बंदे से कहते हैं मुसलमान नहीं है, ऐसे काफिर हो गया, ऐ तो गुस्ताख रसूल है। आपने देखा नहीं था वो जो बंदा अपनी मिल्लत का तर्जुमान बन के हमारा मेहमान बना था, तो हमने उसके सामने भी उसका चेहरा खोला है कि आप अपनी मिल्लत के सामने अथेंटिक मौलवी नहीं, मुसलमान भी नहीं है। उन्होंने तो आप पे गुस्ताख रसूल का फतवा दिया हुआ है। पहले आप अपने घर की खबर लें, फिर उसके बाद हमसे बात करें। तो आपने देखा वो तर्जुमान का तर्जुमा करने के लिए भी दुनिया में कोई नहीं है। उसकी वजह, उसको हमने कहा जब आईना उठाया करो पहले देखा करो फिर दिखाया करो। आप आईना उठाकर दिखाना शुरू कर देते हैं, यूं नहीं, आईना पहले देखना चाहिए फिर उसके बाद दिखाना चाहिए। तो ये सिफत हाजिर और नाजिर है। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा नजरिया, अल्लाह की जात बिला जिस्म, अल्लाह की जात बिला जसद हर जगह मौजूद है। इसके मुकाबले में इन्होंने अपने मज़ऊमा, अपने गड़ांतु और अपने बनाए हुए अकीदे की तशहीर जो की है, ये आपके सामने फाइल मौजूद है, आप देखते चले जाइए इसके हवाले। इसमें ये हजरात कहते हैं कि जो ये अकीदे न माने वो मुसलमान ही नहीं है। ये अनवार कमरिया सफ़ा 107 तबा जामिया कमरुल इस्लाम, ये दिल्ली कॉलोनी कराची से छपी है। मौलाना ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी साहब लिखते हैं, महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर नाजिर होने का इनकार इल्तिजाम कुफ्र है जिससे निकाह नहीं रहता। पता नहीं इनको हमारे निकाह की बड़ी फिक्र पड़ी हुई है। दूसरा हवाला मौलाना फैज अहमद उवैसी साहब का है। इनका जो रिसाला है उसका नाम है सहाबा कराम का अकीदा हाजिर और नाजिर, इसका सफ़ा नंबर 8 है। ये कुतुब खाना उवैसी सीरानी रोड बहावलपुर से छपा है। लिखते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर नाजिर होने का इनकार वही करेगा जो या तो अपने आप को मोमिन न जाने या हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी न समझे। तीसरा हवाला
हवाला मिक़यास हनफियत हिस्सा हाजिर और नाजिर सफ़र नंबर 268। ये स्वयं तबा है, इंशा प्रेस उर्दू बाजार लाहौर से छपी है। मौलवी मोहम्मद उमर इचरवी लिखते हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर और नाजिर होने के मुनकिर हैं, इनकी यही वजह ही हो सकती है कि वो ईमान से खाली हैं। चौथा हवाला ये आपके सामने मौजूद है, ये इबारात अकाबिर का तहकीकी व तनकीदी जायजा, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 170, तबा अहल सुन्नत पब्लिशर दीना जहलम से छपी है। इस पे मौलवी गुलाम नसीरुद्दीन सियालवी लिखते हैं, ये लोग यानी देवबंदी उलमा के बारे में कहते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ कामिला के इनकार की वजह से काफिर हो गए हैं। जिन सिफात कामिला के इनकार इन लोगों ने किया है, इनमें इल्म गैब भी है, हाजिर और नाजिर का मुनकिर हो जाना भी है। ये इनके कुफ्र की वजूहात हैं। 5वें नंबर का हवाला देवबंदी मजहब मशाइख और उलमा की हिदायत, सफ़र नंबर 635। ये इशात 1 नवंबर 2012 को हुई है। इसका नाशर बरेलवी तंजीम अहल सुन्नत पाकिस्तान है। मौलवी गुलाम मेहर अली शाह खतीब चिश्तियां यही इबारत लिखते हैं जो ऊपर मैंने आपके सामने गुलाम नसीरुद्दीन सियालवी की बताई है। ये 5 वो इबारात हैं जो बरेलवी तबके की मशहूर और मारूफ हैं कि उलमाए देवबंद मुसलमान नहीं है। तवज्जो रखें, अब मैं इस पर थोड़ा सा वो तबसरा आपकी खिदमत में समझाता हूं, जरा आप मेरी आंखों में आंखें मिलाएं ताकि मैं आपको कुछ बात समझा पाऊं। जब गुफ्तगू हो, बात करनी पड़ जाए, शुरू में उसूल याद रखें, बात न करें, अपने बंदों को समझाएं। मैंने कल भी बात की थी इस पर कि अपनों पर मेहनत करें। आप अपनों पर मेहनत करेंगे आपको मामला ठीक रहेगा, गैरों पर मेहनत न करें। जो बंदा अपनी कश्ती को बेहतरीन बनाता है, महाजबीन दिल नशीन और हसीन बनाता है, दूसरे की कश्ती डूब जाए इसे परेशानी नहीं रहती। और जो दूसरों को कहेगा तेगा लाचा और ये कर ले वो कर ले, अपनी कश्ती की फिक्र नहीं है, तो फिर एक दिन लोग इस पर फातिहा पढ़ने भी आ जाएंगे। पता नहीं आएंगे भी या नहीं आएंगे। अपने घर को मजबूत करो, अपने बंदों पर मेहनत करो, दुरूद शुरू करो, बयानात शुरू रखो, मजलिसें शुरू रखो, बताना शुरू करो अपनों को। क्या आपने हदीस पाक नहीं सुनी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया था, अली 70 काफिर कत्ल करने से बेहतर है एक को मुसलमान कर ले। इसका क्या मतलब है? एक को जो मुसलमान करेंगे इसकी मेहनत जो होगी दीन ईमान पर वो आपके खाते में ज्यादा आएगा। तो 70 दूसरों पर मेहनत करने से अच्छा है अपने एक बंदे की तैयारी शुरू करा दो। बस मैंने ये तय किया है, मैं अपनी सलाहियतें किसी अहले बातिल पर सर्फ नहीं करता। फोन आए, अस्सलाम वालेकुम, मैंने एक मसला पूछना है। बेटा बताएं, आप हनफी देवबंदी हैं? जी नहीं। ठीक है, आप किसी अपने आलिम से पूछिए, आपको अपने मसले पर तसल्ली हो जाएगी, मुझसे मत पूछिए। अगर वो चुप हो जाए तो बात खत्म। अगर कहीं जवाब नहीं आता फिर हमें भी जवाब आता है। हम सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना जानते हैं। फिर मैं भी कहता हूँ, हाँ बेटा मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको अपने मजहब में शक है, आप अपने मजहब को मशकूक मानो कि वो गलत है, मुझे शक पड़ गया है, मैं शशो पंज में मुब्तला हो गया हूँ, फिर मैं आपको आपकी मजहब की कली खोल के हकीकत दिखाऊंगा। अगर आपको आपके मजहब में शक नहीं है तो फिर अपने उलमा से पूछे, मैं तो आपके मजहब का आलिम नहीं हूँ। मैं कुकड़ हटा गया, ये अब आप तशरीफ फरमा है और नवाब ने मुझे कहा ले ये लोग ये सवाल करेंगे वो सवाल करेंगे। मैंने कहा मैं इनके सवाल जानता हूँ। मैंने शुरू में यही कहा, मैंने कहा मुझसे मेरा देवबंदी हनफी उठ के सवाल करे मैं बताऊंगा। गैर मजहब वाला उठना चाहते तो अपने मजहब के आलिम से पूछे, हमसे न पूछे। हमसे उस वक्त पूछे जब माने उसका मजहब में उसे शक पड़ गया है। आप पूछो, हूं कोई नहीं पूछता, अब कोई नहीं पूछ। अपने बंदों पर सलाहियतें पैदा करो। गैर के ऊपर सारा दिन रजा खानियत की फिक्र, सारा दिन ममातियत की फिक्र, सारा दिन गैर के मुकल्दियत की, ये इनकी फिक्र कर करके अपने बंदों को दलाइल नहीं सिखाए। राफिजियत पर बात करने से बेहतर है अपने बंदों को खिलाफत सिद्दीक के दलाइल से बहरावर कर लो। मिर्जाई तुम्हारे हाथ काबू नहीं आएंगे, छोड़ो मिर्जाइयों को, किसी के लिए जहन्नम भी बनी है। अपने बंदों को हयात ईसा, अपने बंदों को खत्म नबूवत के दलाइल समझा दो। गैर मुकल्दियत को क्या आप समझाओगे? आप अपने बंदों को इमाम आजम अबू हनीफा की फकाहत समझा दो। क्या आप उलमाए देवबंद के लिए फाजिलीन के तबका, वो फाजिल बरेलवी के तबके पर बात करने से बेहतर है अपने उलमाए देवबंद को आप इबारात के दलाइल समझा दें। क्या ममातियत का तारुफ करें, अपने बंदों को अकीदा हयातुन नबी के दलाइल समझा दें, अपनों पर मेहनत करें। मैं एतराज नहीं करता, हमारे अकाबिर ने इखलास से इनको पढ़ाया होगा, लेकिन अगर शुरू से ठुड्डा मार के निकाल दिया जाता तो कभी कैप्टन मसूदुद्दीन उस्मानी अपने नाम के साथ फाजिल बिन नूरीटॉन और फाजिल विफाकुल मदारिस अरबिया न लिखता, कभी सईद चित्रोड़ी अपने आप को फाजिल दारुल उलूम कबीर वाला न लिखता। यकीन माने अपने
हम तो इखलास के लिए चलते हैं। मैंने तय किया हुआ है हमारे मदरसे में, आप फाइल देखे नीचे, तालिब इल्म का अहले सुन्नत वल जमात होना ज़रूरी है। और हम अहले सुन्नत वल जमात की तशरीह मुल्क पाकिस्तान हिंदुस्तान में हनफी देवबंदी ही समझते हैं। मेरे एक शागिर्द है, मुझसे पढ़ रहे थे शाशी, तो उन्होंने एक गैर मजहब वाले शख्सियत के लिए मुझे कहा इमाम आला हजरत यूँ फरमाते हैं। मैंने शाशी बंद कर दी। मैंने कहा बेटा एक बात तय हो गई, मुझे तो नहीं पता था आप ये हैं, आपने तो फॉर्म पुर कर दिया है, तो आप मुझे ज़रा समझाएं कि वो आला हजरत हैं और मैं समझाऊंगा वो अदना हजरत भी नहीं है, आओ बात करते हैं। मैंने फाइल बंद। उस्ताद जी आप नाराज़ हो गए। मैं बेटा मैं, उस्ताद जी आप गर्म हो गए। मैं मुझे हाथ लगा, मैं तो ठंडा बैठा हूँ, कौन कहते हैं गर्म हो? मैं गर्म गुफ्तगू में हमेशा अपने जहन को बिल्कुल ठंडा रखा करो। जहन के 80 खुलियात हैं, गुस्से में 60 बंद हो जाते हैं, 20 खुलियात से फिर नहीं सोचा जाता। बिल्कुल मौकफ गर्म हो, लहजा इस पर नरम हो। मैंने कहा मैं ठंडा हूँ, आप बात करें। हमारी बात चली 2 दिन, वो मुझे नहीं समझा पाया, आला हजरत है। मैंने कहा समझा लो, मैं भी तुम्हारी बात मान लूंगा, नहीं तो फिर आप मेरी बात माने। हक्कुन अहक्कु अन युत्तबा, हक के लिए सबसे बड़ा हक ये है कि उसका इत्तिबा किया जाए। आप समझ लें, उसने नहीं समझा, बंदा हट गया। न मुझे उसकी ज़हानत चाहिए, न मुझे उसकी फतानत चाहिए, न मुझे उसकी इताअत चाहिए, न मुझे उसकी खुदमत चाहिए, पहले उसका अकीदा ठीक होना चाहिए। इस पर हमें कोई फिक्र नहीं है। कल मैं तो नहीं, मेरे बारे में तो कोई नहीं कहेगा फलां आले बातिल इसका शागिर्द है। इस इल्ज़ाम से कम कोई एक बंदा तो बरी हो जाएगा। इसीलिए अपनों पर मेहनत करेंगे तो बात बनेगी। अब मैं बात कर रहा था उसूल गुफ्तगू का क्या है। कभी बात करनी पड़ जाए, ये नहीं हो आप दौरा ताकीकुल मसाइल से उठे और किसी रजा खानी को पकड़ लें। मुफ्ती साहब ने कहा था बात करनी पड़ जाए तो यूं करना, ना ना, ये अपनी सलाहियतें आले हक के दर्स पर लगा देना, अपने बंदों को समझा देना, तो इस पर हम राजी हैं। बात करनी पड़ भी जाए, क्योंकि मुनाजरा ये इल्मी जंग है, और इल्मी जंग के लिए उसूल वो हैं जो जंग के मौजूद है। ला तमन्नौ लिकाअल अदुव, हदीस में है जंग की तमन्ना नहीं करो, और अगर हो जाए तो फिर मजबूती इख्तियार करो। आप कभी इसके लिए, इसलिए हम चैलेंज नहीं करते। जिसको शौक है वो आकर हमसे बात कर ले, जिसको शौक है वो तशरीफ ले आए, हम उसको शौक बड़े अच्छे तरीके से, आसान तरीके से, बेहतरीन नंबरों से पूरा करके दिखाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो खुद नहीं करते, हमारे अपने अहबाब हैं। वो कहते हैं ना, मुझे नफरत करने वालों से क्या शौक, मैं मोहब्बत करने वालों में मसरूफ रहता हूँ। इसीलिए उस फिक्र नहीं किया करें, खुली खुली बात करो। तो अगर बात करनी पड़ जाए कभी, तो फिर कौन सा तर्ज इख्तियार करेंगे, वो तर्ज मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। 2 तबसरों के तहत जो इनका अकीदा आया है ना, आप मुझे देखें, बाज़ चीज़ें देखने से हल होती हैं। देखने का माना यह है अफलाक से खींची जाती है, सीनों में उतारी जाती है। तौहीद की मैं बाज़ औक़ात सागर से नहीं नज़रों से पिलाई जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ मुझे देखो, 2 किस्म के तबसरे। नंबर 1, आप पहला तबसरा इनके साथ यूं करें कि देखें बात यह है, आपने हमें कहा है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम समेत तमाम अंबिया हाजिर और नाजिर है। एक बात छोटी सी तय कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। नंबर 1, हुज़ूर अलैहिस्सलाम कब से हाजिर नाजिर हैं? एक एक सवाल करें और सवाल पर मजबूत रहें, अपने सवाल को मत छोड़ें जब तक सवाल का जवाब ना आए। एक बंदा मुझे कहने लगा उनके पास तो जवाब नहीं है। मैंने कहा फिर दूसरा ऑप्शन भी है, वो माफ़ी मांग ले। यार मैंने गलत मसला छेड़ा है, माफ़ी मांग के रुजू कर ले, पीछे हट जाए, तो बात तो ठीक है। रुजू भी नहीं करेगा तो फिर मिल्लत जो वीडियो देखेगी वो उसकी मर्जू समझेगी। फिर आप अपनी बात पर मजबूत रहें, आपने नहीं हटना। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब से हाजिर नाजिर हैं? डेट ऑफ द हाजिर नाजिरशिप। आप हमें हाजिर नाजिर होने की जरा तारीख बता दो। बिस्मिल्लाह, शाबाश, किस दिन से हाजिर है, ये करें इन पर सवाल। उसके बाद ये अगर कहे इसकी तशरीह करो, पैदाइश से पहले या पैदाइश के बाद? पैदाइश से पहले या पैदाइश के बाद? अगर पैदाइश से पहले फिर भी आप समझा दें, पैदाइश के बाद है फिर भी आप समझा दें। थोड़ा सा आगे बढ़े तो कहीं पैदाइश के बाद है, अगर यूं कह दे तो फिर आप पूछें ऐलान नबूवत से पहले या ऐलान नबूवत के बाद। ठीक है, वो पेच होते हैं ना, उसकी डिबरी होती है डुमरू की तरह ऊपर चढ़ाने के लिए, ये डिबरी बन रही है, आपको नहीं पता इसने कहां कहां जाकर फिट होना है। तो पहला सवाल क्या था, कब से? पैदाइश से पहले, पैदाइश के बाद? पैदाइश से पहले कह दे तो फिर आप बहुत आसान तरह हल कर सकते हैं। अगर पैदाइश से पहले हाजिर और नाजिर थे तो सैयदा अम्मा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पेट में भी थे, बाहर भी थे, तो फिर वज़े हमल नहीं हो सकता, पेट में हुजूर तशरीफ नहीं ला सकते। आप कैसे कह रहे हैं? तो पैदाइश से पहले तो यकीनन नहीं है, इस पर खामोशी हो जाएगी। अब पैदाइश के बाद है, तो पैदाइश के बाद है, ऐलान नबूवत से पहले है, तो शरीयत का मामला फिर कैसे बना? और अगर ऐलान नबूवत के बाद है तो फिर आप मुझे सबूत दे दें इसका। ये तर्ज इख्तियार करके उसके बाद आप पूछें। अगर ऐलान नबूवत के बाद है तो मेरा सवाल यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में खुद मदीना या मक्का में तशरीफ फरमा थे,
फिर हर जगह हाजिर और नाजिर होने का मतलब क्या था? फिर हाजिर नाजिर, हर जगह हाजिर और नाजिर थे, हुजूर मौजूद भी थे और देख रहे थे, तो फिर बाकी लोग ताबी क्यों बने थे? जैसे निजाशी है, उसको तो सहाबी बनना चाहिए था, क्योंकि हुजूर हाजिर भी थे, नाजिर भी थे। अगर वो ना देख रहा था तो हुजूर तो देख रहे थे ना, तो फिर ताबईन क्यों बने? फिर सहाबा ज्यादा होते, 1.25 लाख सहाबा पे जाकर तादाद खत्म हो जाती है। वजह क्या है? हुजूर देख रहे हैं, क्योंकि उसूल है मुसलमान हुजूर को देखे, न देख सके इब्ने उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह अन्हु की तरह हो तो हुजूर उसे देखे, तब सहाबी बनता है। तो फिर आप जरा ये फरमाएं, जब हुजूर दुनिया में तशरीफ फरमा थे तो फिर हाजिर नाजिर होने का मतलब क्या था? जब ये सवाल पूरे हो जाए फिर उसके बाद आप अपनी बात पेश करें। उसे कहे जनाब जरा बात का जवाब देने से पहले एक बात जरा तसल्ली कर लें, नोट फरमा लें, ज़हन नशीन कर लें। इन सवालात के जवाबात के लिए आप फरमान खुदा या फरमान मुस्तफ़ा या उम्मत का इजमा पेश करोगे, वरना ऐसी तैसी की बातें हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। पढ़ो फरमान खुदा, पैदाइश से पहले हाजिर या पैदाइश के बाद, ऐलान नबुव्वत से पहले हाजिर या ऐलान नबुव्वत के बाद। जब दुनिया में तशरीफ फरमाते उस वक्त हाजिर नाजिर का मतलब क्या था? फरमान खुदा है जी नहीं है, खैर है। फरमान मुस्तफ़ा है जी नहीं है। उम्मत का इजमा है जी नहीं है। तो फिर न कपई है न पिन सलई है, फिर तुम कैसे मुंशी बने हुए हो? तो कोई तो सबूत होना चाहिए ना, कोई तर्ज पे तो बंदा दिखाए, कोई सबूत हो। एक बंदा था, वो किसी का मुंशी बनने के लिए गया, तो जब उसके पास गया तो उसने कहा जी मुंशी वो होते हैं इंशा से जो लिखे, लिखने के लिए पेन भी चाहिए, कागज भी चाहिए। पेन चाहिए तो कागज ना हो तो फिजा में तो नहीं लिखेगा, या उसके पास कागज हो तो पेन ना हो तो उंगली से कैसे लिखेगा? ये तकदीर वाला कलम तो नहीं है कि खुद ही लिखना शुरू कर दे। तो आपके पास कपाई है, वो कापी नहीं कह सकते थे, उर्दू बोलने में उनको मसला था। उन्होंने कहा जी कपाई तो नहीं है। उन्होंने कहा पेन सलई है, उन्होंने कहा जी पेन सलई नहीं। उन्होंने कहा फिर तो किस चीज का मुंशी है? तो मुंशी तो नहीं है ना। तो हैरानगी की बात है, न इनके पास फरमान खुदा है, न फरमान मुस्तफ़ा है, न उम्मत का इजमा है। तो फिर ये अकीदा कैसे बन सकता है? जनाब मोहतरम, देखो बात करना मुश्किल है। देखो अभी 11 बज रहे हैं, अभी बात खत्म हो गई। बात बंदा सलीके से करे, तरीके से करे, दलील से करे, तो फिर बात बनती है, फिर बात बिगड़ती नहीं है। इस पर एक दो बात साथ और भी कर लें इसी तबसरे में। ऐसे को यार एक बात बनाओ, आप लोगों को अकीदा हाजिर नाजिर जो दिया है, इस पर अगर वो ये कहें कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जब तक दुनिया में मौजूद थे तो हाजिर नाजिर नहीं है, दुनिया से गए हैं तो हाजिर नाजिर हैं, फिर इस पर ये बात करें कि वफात के बाद आप हाजिर नाजिर मानते हैं, क्योंकि आप दुनिया तक तो सबूत नहीं दिखा सकते। अगर वफात के बाद मानते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो वफात हो गई थी, आपको ये अकीदा किसने दिया है कि हुजूर हाजिर नाजिर हैं? आपको किसने दिया है? जरा उस शख्सियत का नाम तो बता दें, कुछ हम भी तो ज़ियारत कर लें, कुछ हमारे दिलों में भी तो अरमान तड़प उजल रहे हैं, हम भी देखना चाहते हैं कौन सी शख्सियत है जिसने आपको ये अकीदा, नजरिया, मजहब, मसलक, मौकिफ और जो है ना राय दी है, जिसकी बुनियाद पे आप कुफर और इस्लाम के फतवे लगा रहे हैं। कोई छोटी मोटी राय तो नहीं है ना, आप कुफर और इस्लाम के मसले की जंग लिए बैठे हैं। जरा उस शख्सियत का तारुफ, इंट्रोडक्शन हमारे सामने उसकी तस्वीर पेश करें, वो बंदा कौन है। नंबर 2, हुजूर पाक की वफात पर तो दीन मुकम्मल हो गया था, आपको ये बाद में इसका हाशिया किसने दिया है? तशरीह हो सकती है जैसे इमाम साहब ने की है, ये तशरीह तो नहीं है। तशरीह की बुनियाद पे किसी को काफिर क्या कहेंगे? आप तो असल की बुनियाद पे कुफर कह रहे हैं। जरा ये अकीदा आपको किसने दिया था? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ ले गए तो अब बताओ फिर हाजिर नाजिर कैसे हुए? हुजूर तो कब्र में गए, तो इसका माना फिर हुजूर को कब्र में नहीं रखा गया। सुम्मा अमातहु फाकबरा का कानून तो टूट गया। अमातहु फाकबरा, फौत होने के बाद कब्र मिलती है, आप कहते हैं हर जगह है वफात के बाद, तो अब कब्र तो नहीं मिली, फिर तो बाज हिस्से को कब्र मिली है, बाज हिस्सा बाहर है, तो आपने तो तजज़ी कर लिया। जनाब मोहतरम जरा इसकी थोड़ी सी वजाहत कर लें और यकीन मानो वला युमकिनुहु इंशाअल्लाह ताला इला यौमिल बास वल जज़ाए वल मीज़ान, क़यामत तक ये मुमकिन नहीं। मैं बड़ी शराबस्त के साथ कह रहा हूं, ये ना समझे मैं अपने बंदों में कह रहा हूं, वीडियो के जरिए पैगाम पूरी दुनिया में जा रहा है। ये क़यामत तक इसका जवाब मुमकिन नहीं है। क्यों? जो चीज दीन में ना हो उसका जवाब दिया जाएगा तो दीनदारी तो नहीं, बेदीनी होगी, और बेदीनी से दीन को तोड़ना मुमकिन नहीं है। बेदीनी से दीन नहीं टूटता, दीन में तो है ही नहीं, तो इसका जवाब नहीं लाया जा सकता।
ये कमजोर तरीन इस बात पर रजा खानियत का मौकफ है। व इन्न अवहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, ये तारे अनकबूत मकड़ी के जाले से भी कमजोर मौकफ है। मकड़ी कुछ ना कुछ अपना जाला बना के काम तो कर लेती है, आप तो वो जाला भी नहीं बना पाए जनाब आला। आपके पास क्या चीज है? आपके पास कोई दलील तो होनी चाहिए जो उम्मत के सामने बंदा पेश कर सके। कब्र मुबारक में जाने के बाद इस पर छोटी सी बात एक करता हूँ, ज़ोहर के बाद इंशाअल्लाह तफसीलन अकीदा हयातुन नबी पर बात करेंगे। अंबिया कराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं, इंदल कब्र सिमा साबित है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। इस पर आप मजीद शाम को देख लेंगे। दूसरा तबसरा जो आजकल ये पहला मौकफ तकरीबन मुनाजरे के अंदर ये बंदे छोड़ चुके हैं। हुजूर हर जगह है, मुनाजरे पर ये बाज़ों का चोट खा खा के ना कुछ ना कुछ तो बंदे को समझ आ जाती है ना। तो आजकल दूसरा मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है, ये दूसरा तबसरा उसके लिए। वो कहेंगे जनाब हुजूर की रूह हर जगह हाजिर और नाजिर है, ये दूसरा तबसरा है। हुजूर पहले हुजूर पुरनूर हाजिर नाजिर थे, अब वो जवाब आते आते रास्ता थोड़ा सा नई मोटरवे बन जाए तो फिर नया रास्ता निकल आता है ना। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारक हर जगह हाजिर नाजिर है, और वो लोग ये समझते हैं कि रूह वाला हम शोशा छोड़कर ये पैंतरा चलाकर ये नया उम्मत के अंदर फसाद डाल के शायद हमारा गड़ांतु अकीदा चल जाएगा। नहीं बाबा, गड़ांतु अकीदा चलने के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए। हजरत उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, एक वलीमे के अंदर खाना लगाया जा रहा था तो एक बंदा मदऊव नहीं था, तुफैली था, खामखा से मुझे वैसे ही ले जाओ, एम पास जिसे कहते हैं, तो वो तुफैली था, वो गया हुआ था और पेट पे हाथ मार मार के अभी मैं तेरा इंतजाम करता हूँ, अभी जाता हूँ। तो वलीमे वालों ने भांप लिया कि यार मामला कुछ खराब है। तो सारे बंदे तो अंदर जा चुके थे, सिर्फ 4 मिरासी ठहरे हुए थे जो अपनी तूती शूती बजा रहे थे, और वो बजाते तो उसके बाद बैठते और वलीमा शुरू हो जाता। तो ये तुफैली जो करीब गया, इसके पास तूती भी नहीं थी, कार्ड भी नहीं था, ना कपई थी, ना पेन सलई थी, तो अब ये क्या करता? तो इसने अपने पास एक डंडा रखा हुआ था, वो अपने मुंह में तूती रख के बजाते तो ये अपना डंडा साथ यूं यूं हिलाना शुरू कर देता, बजता तो नहीं था। तो हजरत उकाड़वी रहमतुल्लाह फरमाते हैं वो असल बंदा भांप गया, उन्होंने कहा जी ठीक है आ जाओ, जो तूती बजाने वाले हैं फर्दन फर्दन बजाते आओ, अकेले अकेले बजाओ और बैठते चले जाओ। तो पहले मिरासी ने बजा लिया, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, उनके पास तो तूती थी, इसकी बारी आई तो इसका डंडा था, उन्होंने कहा जी तू भी बजा और बैठ जा। तो इसने कहा जी मेरा अकेला नहीं बजता, इनके साथ मिल के बजता है, ठीक है ना, अकेला नहीं बजता। तो ये अब आप भी समझते हैं कि हमारा ये रूह वाला मसला चल जाएगा। जनाब मोहतरम अकेला नहीं चलता, इसके साथ कोई बात मिल के चलेगी। पकड़ने वाले और ताड़ने वाले कयामत की निगाह रखते हैं, इस पर इनको को बात तय हो गई। रूह खालिक है या मखलूक है? ज़हरी बात है, खालिक तो नहीं कहेंगे, मखलूक कहेंगे। उन्हें कहा मखलूक की सिफत ये है वो एक जगह होती है, दूसरी जगह नहीं होती। रूह को कितना तेज, बहुत तेज है। मैंने कहा अच्छा मैं जरा तेजी बताता हूं। नंबर 1, रोशनी की तेजी आपने दुनिया में नहीं सुनी। सूरज चढ़ता है अपनी जगह पे, ठीक है, मशरक से निकलता, वहां से तुलू होने लगा, हमारे कमरों में भी रोशनी फैल जाती है। रोशनी कितनी तेज है, रोशनी की आवाज कितनी तेज है, रोशनी की रफ्तार कितनी तेज है। तो लेकिन रोशनी भी जहां होती है वहां अंधेरा नहीं होता, और जहां अंधेरा होता है वहां रोशनी नहीं होती। धूप की मिसाल लीजिए, जहां धूप आ जाए रोशनी पहुंच जाती है, और जहां धूप न पड़े वहां साया ही नहीं होता। तो आप कैसी बात करेंगे? इस पर अगर आप कहें कि आप बैठे हैं, आपका साया नजर आ रहा है या धूप तो नहीं है, मैं कहूंगा ये धूप का बेटा तो है ना, ये रोशनी भी धूप का बेटा है। सोतेला कह दें, खियाफी कह दें, अल्लाती कह दें, कोई भी कह दें, बेटा तो है ना। तो मैं बात अंधेरी की कर रहा हूं। ये 7 दफा दखले मुकद्दर किया है, कहीं यूं ना कहे पीछे साया नजर आ रहा है। तो नंबर 2, दूसरी मिसाल हम देते हैं कि जनाब मोहतरम रूह की मिसाल देखें। रूह को अगर सैर करने का मौका मिल जाए तो जिस जगह होती है वहां से चले जाने के बाद वहां नहीं होती। सूरत नंबर 39 सूरत ज़ुमर आयत नंबर 42, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हिन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकु अल्लती क़ज़ा अलैहा अल-मौत व युरसिलुल उख़रा इला अजलिन मुसम्मा। ये आयत उठाएं, अल्लाह फरमाते हैं सोने वाले की बिरों में कब्ज़ कर लेता हूं, और सोने वाले के लिए उसूल ये है जिस जगह का ख्वाब देखता है रूह वहां है। ख्वाब उम्रे का देखा रूह उम्रे में, ख्वाब मदीने का देखा रूह मदीने में, ख्वाब बैतुल मुक़द्दस का देखा रूह बैतुल मुक़द्दस में, ख्वाब बाग का देखा रूह बाग में, ख्वाब किसी और मुल्क कदे करूँ वहां है। उठने में हमने कहा उठो, उठो का लफ्ज बोला,
फौरन रूह यहाँ वापस आई है, फौरन आनन फानन पहुंची है, बंदा उठ गया है। ये रूह की स्पीड इतनी तेज है। आप बताएं जिस जगह पहले थी उधर बाद में नहीं थी, और जहां बाद में आई है वहां पहले नहीं थी। तो रूह की स्पीड भी तो ऐसे है, जहां पहले है वहां बाद में नहीं है, और जहां बाद में है वहां पहले नहीं है। नंबर 3, रफ्तार के अंदर फरिश्तों को देख लो, फरिश्तों की रफ्तार कितनी तेज है। ये आनन फानन जमीन और आसमान पे शरीफुल कलाम से आ और जा रहे हैं, इनकी ड्यूटीज चेंज हो रही हैं, इनकी इतनी स्पीड है, वो स्पीड दुनिया की किसी स्पीड उसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये बहुत तेज है। ये मैंने 3 स्पीडें पेश की हैं, और ये तीनों दुनिया की तेज तरीन रफ्तार रखने वाली चीजें हैं। एक सूरज की रोशनी है, और एक जो है ना क्या कहते हैं रूह है, और एक फरिश्तों की रफ्तार है। ये तीनों भी जिस जगह होते हैं पहले, बाद में उधर नहीं होते, जहां बाद में होते हैं वहां पहले नहीं होते। आप कैसे कहते हो हुजूर की रूह हर जगह है? अगर हर जगह तो फिर जिस्म में नहीं है, जिस्म में है तो बाकी जगह नहीं है। जनाब मोहतरम इसका जवाब भी दीजिए, लेकिन कम अज कम फरमाने खुदा, फरमाने मुस्तफ़ा और उम्मत का इजमा हो। मैं और बातें आपकी खिदमत में सुनने के लिए तैयार नहीं हूं, वो तो गपशप है। गपशप सुनने के लिए लतीफ़ा सुन लो तो अच्छा है। जो कुरान और खुदा, कुरान खुदा में, फरमाने मुस्तफ़ा में, उम्मत के इजमा में ना हो तो उसको सुनने का फ़ायदा, वो तो शरीयत की मुखालिफ बात होगी जिसको सबूत ही कोई ना हो। तो लिहाजा आप इन तीनों में है तो सुना दें, नहीं हो तो फिर आप तशरीफ ले जाएं। ये दूसरा तबसरा आप रख लें, इसका जवाब भी इनके बस की बात नहीं। नोट अब समझे जरा। इस पर एक बात जो हम कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की रूह खालिक है या मखलूक है, इस पर एक शुबा अवामी पेश किया जाता है। हमें कहते हैं हुजूर अल्लाह की मखलूक लफ्ज कहते हो, हुजूर पाक तो अल्लाह के महबूब हैं। उलमा के यहाँ तो इस शुबे की कोई हकीकत नहीं है, लेकिन अवाम में महबूब और मखलूक का मसला पड़ जाए तो फिर जो है ना अवाम नहीं समझ सकती, फर्क नहीं कर सकती, अलावाम कला नाम, तो वो बेचारे क्या कहेंगे? उन्हें कहा हुजूर मखलूक है, हुजूर तो महबूब है। तो फिर बंदा इस पर, हजरत कादिर साहब कहते हैं ना, बंदा चबलीज में है, थोड़ा परेशान हो जाता है। तो इस पर मैं आपकी खिदमत में यही जवाब पेश करता हूँ, जब ये कहे ना महबूब है या मखलूक है, इन्हें कहो महबूब और मखलूक इकट्ठे नहीं हो सकते। महबूब और मखलूक इकट्ठे नहीं हो सकते। महबूब के लिए खालिक होना जरूरी है। सादे बंदे महबूब भी है, मखलूक भी है, लेकिन ये यूं नहीं मानेंगे। इनको समझाने के लिए सुन्नियतुल अनीफा फी फतावा अफ्रीका सफ़ा 68 का हवाला पेश करें, जो अहमद रजा खान का फतावा अफ्रीका मशहूर है। इसका नाम इतना बड़ा मैंने लिया है, सुन्नियतुल अनीफा फी फतावा अफ्रीका। आप परेशान ना होना, कुल 120 सफ़े का फतावा है, ठीक है ना? अयूब परेशान में इतना बड़ा फतवा है, कुल 120। ये जो है ना क्या कहते हैं, शब्बीर पब्लिशर उर्दू बाजार लाहौर ने दिया है। उसमें अहमद रजा ने बाकायदा इस पर लिखा है कि हदीस पाक के मुताबिक आना व अबू बकर व उमर खलिकना मिन तुरबतिन वाहिदतिन का, हुजूर और हजरत अबू बकर और हजरत उमर एक मिट्टी से बनी हुई मखलूक हैं। मैंने कहा हमें कहते हो हुजूर मखलूक नहीं है, हुजूर महबूब है। जरा अब्बू जी से बात करके देख लें, इल्मी अब्बू है ना, उलाए का आबाई, मैं छेड़ने के लिए बात तो नहीं कर रहा, इल्मी अब्बू है, ठीक है? तो आप जरा इस इल्मी अब्बू से पूछ लें ये इस पर क्या कहता है, तो फिर जो फतवा आप इसके लिए लगाएंगे वो हमारे लिए भी लगा लें। मैं हैरान हूँ, अपनों के लिए इनके यहाँ फतवा और है, हमारे लिए और है। अल्लज़ीना इज़्तालू अलन्नास यस्तौफून, लेने के बाद और देने के बाद और हैं। मुझे एक जगह एक बंदा कहने लगा, ये सारे उलमाए देवबंद के बड़े बड़े, हजरत नानोतवी, हजरत गंगोई, सारे मुसलमान नहीं है। जो इनको मुसलमान कहे वो भी मुसलमान नहीं है। उन्हें मुझे कहा कि ये मुसलमान नहीं है, तो मैंने उनके सामने पेश कर दिया। मैंने कहा यार ये देखें, ये ज़रब शमशीर पीर मेहर अली शाह का कौल लिखा हुआ मौजूद है। ख्वाजा गरीब साहब ने लिखा है कि हज़रत नानोतवी, हज़रत गंगोई, हज़रत सहारनपुरी, हज़रत थानवी, अगर ये शाह इस्माइल अगर ये मुसलमान नहीं हो तो फिर तवज्जो, दुनिया में कोई मुसलमान नहीं है। मैंने कहा ये लो, अगर कुफर का फतवा देना है मेरे ऊपर तो मेरे साथ इनको भी खड़ा कर दें, मेरे साथ इनको भी ठहरा दें, हम दोनों पे इकट्ठा फतवा है। वह इस पे नहीं दिया तो फिर मुझे भी बचा लेना, मुझे गरीब की क्या कसूर है? तो फिर जो फतवा इनको दिया मुझे इनके साथ ठहराए, इनको मुझके साथ ठहराए। मुझे कहने लगा जनाब मोहतरम आपको इनके कुफर की मालूमात है, आप उनकी इबारत की तावील करते हैं। ये बेचारे तो उनके कुफर की इबारत से जो है ना लाइलम थे, इनको क्या पता था, इसलिए उन्होंने लिख दिया कि ये मुसलमान है। मैंने कहा ये जो वो कहते हैं ना इधर टाका उधर उधड़ा, उधर टाका इधर उधड़ा, जनाब आपने पाँव तो छुड़वाया है लेकिन आपका पर फंस गया है। कहते वो क्यों? मैंने कहा तेरे मुताबिक तो पीर की बिलियां भी इल्म गैब जानती हैं, पीर साहब नहीं जानते, लाइलम थे। अगर इनको आलिमुल गैब मानेगा तो फिर इनने ठीक लिखा है, जानबूझ के लिखा है, और अगर आलिमुल गैब नहीं है तो फिर अपने अकीदे से तौबा कर ले।
اچھا، جب یہ بات ہو جائے نا اس کے سمجھانے کے لیے، اس کے بعد بریلویوں کا ایک طبقہ ایک مسئلہ اور نکالے ہوئے، وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ کے سب کو دیکھ رہے ہیں کف دست کی طرح، ایک جگہ بیٹھ کے سب کو دیکھ رہے ہیں۔ میں تیسری بات پر علی سبیل التنزل یہ اتر رہا ہوں، پہلے جسم اور روح، پھر اس پر پھنسے تو پھر خالی جسم خالی روح، پھر اس پر جواب نہ آیا تو ہاں ایک جگہ ہے روح مال جسد، لیکن کف دست ہتھیلی کے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح بیٹھ کر یوں دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک بندہ مجھے کہنے لگا جیسے پلیٹ میں ساری چیزیں پڑی ہوں، اب بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک جگہ پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ اس پر ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پہلے میں حدیث پیش کر کے بعد میں حدیث کی تشریح بھی کرتا ہوں اور اس عقیدے کے مسئلے کو بھی کھولتا ہوں۔ ان اللہ زوالی الارض حتی رأیت مشارقها و مغاربها، صحیح مسلم۔ معراج کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے زمین کو سمٹ کے میرے سامنے رکھ دیا اور میں نے زمین کی مشرق تا مغرب نظر دوڑا لی۔ کہتے ہیں دیکھو حضور نے تو دیکھ لیا، تو حضور کف دست کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ پہلے اس حدیث پر بات کر لیتے ہیں۔ انہیں کہ جناب محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو سمٹ کر، جدید لفظوں میں کہوں مائکرو فوٹوسٹیٹ کی طرح چھوٹا کر کے، ٹھیک ہے، اس کی ریزولیشن کم کر کے میرے سامنے پیش کر دیا ہے کہ آپ یوں دیکھیں۔ اگر حضور ہر جگہ دیکھ رہے تھے تو پھر ریزولیشن کم کرنے کی، سمٹ کر زوالی الارض کی ضرورت کیا تھی؟ یہ حدیث جو تو پیش کر رہے تیرے خلاف بن رہی ہے۔ حضور تو ہر جگہ دیکھ رہے تھے، پھر چھوٹا کر کے دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ بتائیں۔ ایک رضا خانی پاگل مجھے کہنے لگا بڑی تھی نا تو دیکھنے میں تکلیف ہوتی تھی۔ میں نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مختار کل کو بھی تکلیف ہوتی، جس کے پاس تمام اختیارات ہوں اس کو بھی تکلیف ہوتی۔ میں نے کہا پھر تو اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ہر کسی کو رزق دینے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاکم، اللہ نے تو رزق کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، پھر اللہ بھی تکلیف میں۔ خاموش۔ میں نے کہا سادے بندے کچھ سوچ سمجھ کے بات کیا کریں۔ دوسری بات، تو یہ کیوں چھوٹا کیا؟ اس کا جواب جناب محترم تیرے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے بس کی بات ہے۔ ہم کہیں گے چھوٹا اس لیے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، تو محبوب اور مخلوق ہر جگہ حاضر ناظر نہیں تھے، اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کے سامنے کیا دیکھ لیں اپنی پوری امت کو۔ تو وہ ایک بار دیکھا جناب محترم، پھر اس کے بعد زمین کو کھول دیا گیا ہے، ہر وقت تو نہیں دیکھا، دیکھا تھا تو انہی کو دیکھا تھا تو اس وقت موجود تھے، بعد میں آنے والی نسلوں کو بھی سمیٹ کر دکھا دیا گیا۔ تو زوالی الارض ہے، زمین کو دکھایا گیا، اس میں ہر بندے کو جاننا، ہر بندے کی اولاد کو جاننا، مخلوق کو جاننا، اس کی ملکیت کو جاننا، غیر ملکیت کو جاننا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ اور یہ صرف ایک موقع پہ ہے، تو اس ایک موقع کو پوری زندگی پر فٹ کر رہا ہے۔ اگر یہی بات ہے پھر ایک موقع والے کام کو پوری زندگی پر فٹ کرو گے۔ عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زباتا تھا قوم فبال قائمہ، آپ پوری زندگی پر فٹ کرو گے؟ یہ کبھی کبھار کی بات کبھی کبھار کی ہوتی ہے، کبھی کبھار والے مسئلے کو خاص کو عام پر فٹ نہیں کیا جاتا۔ میرے پاس وقت ہوتا نا خاص کو عام پر فٹ کرنے کی، میں عوامی مثالیں آپ کو سمجھاتا کہ اس پر فٹ کیسے ہوتا ہے معاملہ، لیکن ابھی ذہن سازی میں یہ مسئلہ چل رہا ہے اور میں سامنے گھڑی کو دیکھ رہا ہوں تو پریشانی میری بڑھ رہی ہے۔ اب ذرا تھوڑا توجہ رکھیں۔ اگر ایک بات تو ان کے ساتھ یوں کر دیں، دوسری بات ایک جگہ بیٹھ کر سب کو دیکھ رہے ہیں، اس غلط بات کو ایک منٹ کے لیے مان لیں، رد کرنے کے، انہیں کہا جی مان گئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب سے حاصل ہوئی ہے ذرا فرمائیں؟ پھر وہی سوال، پیدائش سے پہلے، پیدائش کے بعد، اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد۔ اس پر بھی فرمان خدا، فرمان مصطفیٰ یا امت کا اجماع، کیونکہ دلائل تین ہے نا، آپ نے پڑھا ہوگا القیاس مظہر لا مثبت، قیاس مسئلہ دکھاتا ہے، مسئلہ بناتا نہیں ہے، اور مسئلہ بنا کے دینا قرآن سنت اور اجماع کی ذمہ داری ہے۔ اس کا جواب دیں، ان کا جواب اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اگر کسی موقع پہ کہہ دیں تو قرآن کریم کی آیات موجود ہیں، سورت آل عمران آیت نمبر 44 آپ پڑھ لیں، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، کون پرورش کرے؟ سارے بندے بیٹھے ہیں اور قلم پھینک رہے ہیں اپنی دریا میں، یہ قرآن اندازی کا طریقہ تھا، جس کی دریا نے قلم واپس کر دینی ہے وہی کفالت کرے گا۔ اللہ نے فرمایا پیغمبر جب یہ کام ہو رہا تھا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ تو اگر پیدائش سے پہلے مانو گے حضور کف دست کی طرح دیکھ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ادھر موجود نہیں تھے۔ اور یہی آیت کا دوسرا حصہ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ،
हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त उनके पास नहीं थे, उनका झगड़ा हो रहा था। सूरत क़सस आयत नंबर 44, वमा कुन्त बिजानिबिल ग़रबी इज़ क़ज़ैना वमा कुन्त बिजानिबिल ग़रबी इज़ क़ज़ैना इज़ा मूसल अम्र वमा कुन्त मिनश शाहिदीन। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं थे जब कोह तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी जा रही थी। वमा कुन्त मिनश शाहिदीन, इल्मी लतीफ़ा सुनना, वमा कुन्त मिनश शाहिदीन। रज़ा ख़ानी को जरा इसका तर्जुमा करे, शाहिदीन, शाहिदुन, शाहिदीन, जरा इसका तर्जुमा करो। शुहदा, ये शाहिद, इसका तर्जुमा क्या है? सूरत नंबर 33 सूरत अज़ाब आयत नंबर 45 गालिबन बनती है, इन्ना अरसलनाका शाहिदा। उधर जो अहमद रजा ने तर्जुमा किया है और वमा कुन्त मिनश शाहिदीन में किया है, आप कंजुल ईमान उठाकर देख लें, इन दोनों तर्जुमा में फ़र्क है। तो शाहिद और शाहिदीन का तर्जुमा मादे के लिहाज से तो एक था, आपने फ़र्क क्यों किया है? उधर माना करते हैं इन्ना अरसलनाका शाहिदा, झूठा तर्जुमा, हमने आपको हाजिर और नाजर बना के भेजा है। तो मैंने कहा उधर इस बात था, इधर नफ़ी है। वमा कुन्त मिनश शाहिदीन, इधर कह लो हमने आपको हाजिर नाजर बना के नहीं भेजा, तो इधर वो तर्जुमा नहीं करते। तो एक ही होनी चाहिए ना, लेने और देने के बाद फर्क नहीं होना चाहिए। तो कौम शुएब की तरह कौम रजा भी जो है ना, ये भी अलग अलग इनने बाट बनाए हुए हैं, बाट एक ही होने चाहिए थे। तो वमा कुन्त मिनश शाहिदीन, लफ्ज़ी तर्जुमा तो फिर आपके मुताबिक यही बनते हैं, आप हाजिर और नाजिर नहीं थे, तो आप यही करें। लेकिन इधर ये तर्जुमा करने के लिए तैयार नहीं है। और अगली बात, वमा कुन्त सावियन फी अहली मदयन ततलू अलैहिम आयातिना, सूरत क़सस आयत नंबर 45 अगली आयत है। आप अहले मदयन में मौजूद नहीं थे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहां तिलावत फरमा रहे थे, है ना? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे और आप हमारी आयत की तिलावत करते, आप तो वहां मौजूद नहीं थे, तो अहले मदयन में मना कर दिया गया। सूरत क़सस आयत नंबर 46 अगली आयत में आ जाए, वमा कुन्त बिजानिबित तूर इज़ नादैना, हज़रत मूसा को जब हमने तूर के करीब आवाज़ दी है तो उस वक्त भी आप नहीं थे। तो आप ये कैसे कहते हैं कि हुजूर एक जगह बैठकर सबको देखते हैं? पैदाइश से पहले तो हुजूर एक जगह बैठकर सबको नहीं देखते, ये कुरान की नुसूस क़तिया है। अगर कहे पैदाइश के बाद, इन्हें कहे जी ठीक है, हम इस पर भी बात कर लेते हैं, आ जाओ, कोई मसला नहीं है। आप अपनी बरेलवी किताब भी उठाते लाना जिस पर आपके सब मौलवी उसको बड़े ईमान से, बड़े जो है ना अकीदत से, बड़े एहतराम से, बड़े इकराम से, बड़ी प्यार की नज़रों से देखते हैं। रुश्दुल ईमान फी दौरतिल हदीस वल कुरान, मौलवी अब्दुल रशीद वाली, ये फैसलाबाद वाली उठा कर लेते आना, ये उसकी किताब का बाब नंबर 9 है, हाजिर और नाजिर है, शाहिद और शहीद का माना है, सफ़र नंबर 87 और 86 है, मकबा रिजविया समुद्री फैसलाबाद से है, मौलवी अब्दुल रशीद कादरी ने लिखी है और उसने हदीस पाक नकल की है। अगरचे ये हदीस मुस्नद अहमद में है, लेकिन मैं अपनों का हवाला नहीं देता, इनका हवाला देता हूं ताकि इनके गले में बड़ी अच्छी तरीके से फिट हो जाए। आपके मौलवी ने मुस्नद अहमद की हदीस को कोट किया है, हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु मौजूद हैं, एक औरत जा रही है, उसको किसी ने दिया है, उसने जो खत लिया हुआ है हुजूर अलैहिस्सलाम के लश्कर के राज को फाश करने के लिए, ये अपनी चोटी की बालों के साथ, चुटकिया के साथ उसने बांधा हुआ है, छुपा कर ले जा रही है। एक मसला उसका है और एक मसला हजरत अली को हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने भेजा है, जाओ फलाज जो है ना गुलाम पर जिना करने का इल्जाम है, उसने जिना किया और वो मोहसिन है, शादीशुदा, उसको कत्ल कर दो। तो जो है ना हजरत अली ने कहा जी बिल्कुल ठीक है। ये बात लेकर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की चल पड़े। जब हजरत अली उस गुलाम के पास पहुंचे उसको कत्ल करने के लिए, हजरत अली ने यूं तलवार निकाली है और वो डर के यूं गिरा है, उसका तहबंद खुला है। हजरत अली ने समझ लिया और देख लिया कि यार ये तो नामर्द है और नामर्द आदमी तो जिना कर नहीं सकता, इसने जिना कैसा किया होगा। हजरत अली ने तलवार न्याम में रखी, वापस तशरीफ ले गए। ये मौलवी अब्दुल रशीद रिजवी ने हदीस पाक नोट की है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वो तो नामर्द है, वो तो जिना के ऊपर काबिल भी नहीं है, आप फरमाते उसको कत्ल कर दूं, तो मैं अब क्या करूं? हुजूर ने फरमाया कत्ल तो नहीं किया। क्या रसूलल्लाह मैंने नहीं किया। तो हुजूर ने एक उसूल इरशाद फरमाया बिल्कुल ठीक किया है, कत्ल नहीं किया। क्यों? अशाहिदु यरा माला यरल गायब, अली तो वहां मौजूद था, जो तू देख रहा था मैं वहां गायब था, मैं नहीं देख रहा था। तुम कहते हो पैदाइश के बाद कफेदस्त की तरह हर चीज को देख रहे हैं, माला यरल गायब का तर्जुमा कीजिए। और इस मौके पर समझाने के लिए फिर आप यूं पेन निकालें जेब से, उसकी कैप यहां रखें, एक सफा उठाएं और पेन उठा के नहीं देते, जरा अल गायब का तर्जुमा लिख दें जनाब, थोड़ा सा तर्जुमा लिख दें, ये जलालत का एक अंदाज होता है, जरा इसका लिख तो देना तर्जुमा। तो फिर उधर तर्जुमा लिखने के लिए इनकी हाँ बस की इन्हों दे गोदे पानी ना हो सी, घुटनों में फिर पानी नहीं होगा, या हाथों में वो जो ताकत नहीं होगी, ये अल गायब का तर्जुमा लिखें। हमें कहते हो गायब कहना तौहीन है, ये हुजूर खुद फरमा रहे हैं शायद यरा माला यरल गायब, इसका तर्जुमा क्या करेंगे? एक बंदा मुझे कहने लगा ये खुसूसियत है, ये तो
हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने एक बात फरमा दी है, ये जो है ना क्या कहते हैं वो है गैर मुदरिक बिल क़ियास है, फलां है फलां। मैंने कहा अच्छा, मुँह मंगी मौत। एक रिवायत में और पढ़ देता हूँ, और वो रिवायत इतनी आम है वो तेरे बस की बात नहीं है तोड़ना। मुस्तदरक अला सहीहैन लिल हाकिम किताबुल जनाज़ बाब नंबर 499, अदइयत सलातिल जनाजा हदीस नंबर 1366, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 684, दारुल मारफा बैरूत लबनान से छपी है, जो क्या कहते हैं मुस्तदरक अला सहीहैन लिल हाकिम। इसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जनाजा पढ़ने की तरगीब दी है। आप परेशान ना होना इस हवाले पे, ये अल्लाह मग़फ़िर लिहय्यिना का हवाला है, ठीक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जनाजे की रिवायत को जिक्र किया है कि जब जनाजा सामने होता हुज़ूर जो जनाजा पढ़ते, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना इला आखिरी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम यूं जनाजा इरशाद फरमाते, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिहय्यिना, तर्जुमा करते हैं अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श, व मय्यितना हमारे मुर्दों को बख्श, व शाहिदना हमारे हाजिरीन को बख्श। तर्जुमा व गायबीना, तर्जुमा करें क्या है, हमारे गायबीन को बख्श जो हमसे गायब हैं। इस पर तर्जुमा कर, अगर हुजूर हर जगह हाजिर नाजिर थे, व गायबना क्यों कहा, फिर तो कहना चाहिए था व शाहिदना व शाहिदना। इस पर तर्जुमा करें, व गायबना हुजूर ने क्यों फरमाया। मैं अभी नुसूस पर चल रहा हूं, वरना जो है ना उलमा के हवाले पढ़े तो मेरे ख्याल में अहनाफ की तरफ निस्बत में इनकी झूठी हो जाती है। अहनाफ की तरफ निस्बत में सबसे पहले इज्तिहाद का कायल होना जरूरी है, और इज्तिहाद का कायल होना ये आपके बस की बात नहीं है। अहकामुल कुरान इमाम जस्सास रहमतुल्लाह अलैह की, उन्होंने लिखा है इज्तिहाद उस वक्त हो सकता है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद ना हो, हमसे गायब हों। फी हाल गैबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की गैबत की हालत में उम्मत इज्तिहाद कर सकती है, वरना हुजूर मौजूद हो मुजतहिद इज्तिहाद क्यों करेगा। पैगंबर के फरमान पे अमल कर ले। इज्तिहाद तो तब बनता है जब पैगंबर ना हो, पैगंबर चला जाए फिर इज्तिहाद बनता है। इज्तिहाद को मान के हनफी शाफी हम्बली मालिकी बनते हैं। रजा खानियों, अगर निस्बत अपनी अहनाफ की तरफ करोगे तो फिर आपको इज्तिहाद का कायल होना पड़ेगा, और इज्तिहाद की शर्त यह है फी हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हो सकता, फी हालत गैबत हो सकता है, हुजूर मौजूद ना हो, और आप तो गैब मानते नहीं है, फिर आप इज्तिहाद के कायल कैसे हैं। किस मुंह से खुद को मुकल्लद कहते हैं। अहनाफ से निस्बत खरी करनी है तो फिर ये मानना पड़ेगा। और इमाम आइनी रहमतुल्लाह अलैह ने उम्दतुल कारी में लिखा है, वक़द बात मिन अस्सहाबति खल्क़ुन कसीरुम व हुम गाइबुन अन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम का जनाजा पढ़ते जो हुजूर के सामने होते, और बाद लोग तो वो थे जो हुजूर पाक से गायब होकर भी फौत हो जाते, हुजूर उनके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाते, गायब होकर फौत हो जाते। लगा फतवा अल्लामा आइनी पर, अल-मुतवफ़्फ़ा 855 हिजरी, ये अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी उम्मत अहनाफ का तर्जुमान वकील हनफियत है, इमाम अबू हनीफा के उलूम का शारे है। इस पर फतवा लगा, इस पर क्या बात करेगा। वहुम गायबून अन। मैंने कहा मैं अगर इबारात अकाबिर पर आ जाऊं तो एक तफसील है इसकी, वरना नुसूस कतिया में तो गायब का लफ्ज़ मिलता है, और आप कहते हैं गायब नहीं कहना चाहिए, हाजिर नाजिर मानना चाहिए। ये किस बुनियाद पे है। ये अभी तक मैंने सिर्फ मसले की तनकीह की है, मैंने दलाइल नहीं चलाए, दलील में अब चलाने लगा हूं। तवज्जो है, जवाब नहीं है, तवज्जो है। अब जरा दलाइल सुनना, मसले की तनकीह बड़ी जरूरी है। तनकीह लंबी हो, दलाइल कम हो, कोई मसला नहीं है। आप उस्ताद जी की बयान सुन लें, तमहीद लंबी हो, बयान मुख्तसर हो, इस पर उस्ताद जी नुसूस कतिया का हवाला पेश करते हैं। अगर मैं अभी पेश करना शुरू कर दूं तो फिर बात लंबी हो जाएगी। अभी एक आयत हमने कोट की है, वमा कुन्त लदैहिम इज़ युल्क़ून वाली, तो ये आयत भी सूरत आल इमरान आयत नंबर 44 है। ए पैगंबर आप उनके पास नहीं थे जिस वक्त हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से पहले वो क्या कर रहे थे, कलमे डाल रहे थे। मैं इस पर एक बात सूरत अनआम आयत नंबर 68 ये आयत में देख लें, वइज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूज़ूना फ़ी आयातिना फ़अरिज़ अन्हुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन गैरी। अब इस हदीस को फिट, इस आयत को फिट करना देखना। तो जो अल्लाह फरमाते हैं, ए पैगंबर जब तक ये लोग यख़ूज़ूना फ़ी आयातिना, हमारी आयत का इनकार कर रहे हैं, बेईमानी में मुब्तला हैं, इन बेईमानीन के साथ आप उस वक्त तक मत बैठे हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन गैरी, जब तक ये उस बात गलत काम को छोड़ के ठीक काम की तरफ ना आ जाए। फ़अरिज़ अन्हुम, आप इनसे हट जाइए, आप इनसे पर्दा फरमा लीजिए, आप इनसे चेहरे मुबारक को फेर लीजिए। सारे तर्जुमे इसमें शामिल हैं। ये फ़अरिज़ अन्हुम कुरान पाक का लफ्ज़ ख़ास है, और ख़ास पे अमल करना ये फ़र्ज़ ऐन है।
آپ مجھے بتائیں اگر کف دست کی طرح حضور ہر کسی کو دیکھ رہے ہیں, ہر کے پاس حاضر اور ناظر ہیں, یہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ پر عمل کیسے ہوگا؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ پر عمل کرا کے دکھائیں. یہ لفظ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, ان سے ہٹ جائیے, ان سے دور ہو جائیے, اپنے چہرے کو پھیر لیجیے, ان سے اعراض کر لیجیے. حاضر ناظر چہرے کو پھیر لے تو حاضر ناظر تو نہیں رہا نا. آپ آیت پہ عمل کرائیں یا اپنے جھوٹے نظریے کے اوپر وضاحت کریں. سورۃ توبہ آیت نمبر 84, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ آدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. آپ یہ کل بھی میں نے آیت کوٹ کی ہے, اگر آپ کے ذہن میں ہو, عذاب و ثواب قبر کے ساتھ. آپ عبداللہ بن ابی بن سلول کی قبر پر مت ٹھہریے. حضور تو ہر جگہ ہیں, اللہ کہہ رہے ادھر مت ٹھہریے. وہ تو ٹھہرنے سے پہلے بھی ہیں, ٹھہرنے کے بعد بھی ہیں, تو مت ٹھہریے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ پہ عمل کرا کے دکھائیں اگر رسول اللہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں تو. نمبر 4, سورۃ توبہ آیت نمبر 108, لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. مسجد زرار ہے, جھوٹ کی بنیاد پر بنائی گئی ہے. اے اللہ کے نبی آئیں, آپ افتتاح کریں. کہا میں تبوک کے سفر پہ ہوں, واپسی پر سوچیں گے. کہا جی ٹھیک ہے. منافقین کہہ رہے ہم بڈھے ہیں, ہماری آنکھیں کام نہیں کرتی, ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, ہم مسجد نبی میں حاضر نہیں سکتے, ادھر پڑھ لیں. لے تو لال کی منتیں, ہزاریاں کرنا, تلے کرنا شروع کیے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا تبوک کے سفر کے بعد دیکھیں گے. آپ علیہ السلام تبوک کے سفر پہ ہیں, اللہ نے وحی اتار دی ہے, یہ تو جھوٹی مسجد ہے, یہ تو مسجد زرار ہے, یہ تو تکلیف دہ ہے, اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے, ختم کر لو. ٹھیک ہو گیا. کہاں نماز پڑھیں؟ کہا یا قباء میں یا مسجد نبوی میں. لا تقم فیہ ابدا, آپ اس میں مت ٹھہریے, کبھی مت جائیے. کہاں؟ مسجد زرار میں. تو کہتے ہیں ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں, تو ادھر تو پہلے ہی تھے. لا تقم فیہ ابدا پر عمل کیسے ہوگا پھر؟ یہ لا تقم فیہ ابدا, ابدا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیے, سارے بولو نا, کیا معنی ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ, ہر جگہ حاضر ناظر تو نہیں کہہ سکتا. لفظ ابدا قیامت تک کے لیے آ گیا ہے, ادھر تو حاضر ہو ہی نہیں سکتے. اگر تو ادھر حاضر ناظر کی بات کرے گا تو ابدا پہ تیرا ایمان کیسے رہے گا؟ اور فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, قباء کی مسجد میں ایسے مسلمان ہیں جو پاکیزگی چاہتے ہیں. کہاں ہیں یہ لوگ؟ کہاں ہیں؟ قباء کی. یہ کون ہے رہنے والے؟ صحابہ کرام. صحابہ اس امت کے اولیاء کا اول طبقہ ہے. پتہ چلا صحابہ مسجد میں ہیں, باہر نہیں ہیں. نہ ولی ہر جگہ ہے, نہ نبی ہر جگہ ہے. یہ امت کا اول طبقہ ہے. رجال, صحابہ سے بڑھ کے کون سا ولی لاؤ گے؟ وہ فی ہی ہے, فی غیری ہی نہیں کہا اس وقت کے لیے, تو فی ہی ہے, وہ تو وہی ہے. جناب آپ ہر جگہ کی بات کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ سورۃ یوسف آیت نمبر 13. اگر یہ واقعہ, میں آپ کو واقعہ سمجھا دیتا ہوں. یوسف علیہ السلام کو اٹھایا, بھائی یہ لے گئے ہیں, کنویں میں پھینک دیا ہے, والد رو رہے ہیں, پریشان ہیں. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ, رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی ہیں. آپ مجھے بتائیں اگر نبی کف دست کی طرح ہر کسی کو دیکھ رہے تھے, ہر جگہ تھے, تو کہتے جھوٹ بول رہے ہو, قمیص کے اوپر آپ بھیڑیا کا خون لگا کر لے آئے ہو. یوسف کا کہتے ہو اکل الذئب, اسے کھا گیا ہے, جھوٹ ہے. نہیں نہیں میں تو دیکھ رہا ہوں, یہاں موجود ہے. پھر یعقوب علیہ السلام 40 سال رویا کیوں ہے؟ نعوذ باللہ, الیاذ باللہ, دل تھام کے کہتا ہوں اگر یہ بدبودار اور نجس عقیدہ ہر جگہ والا ان کا مان لیا جائے تو پھر نعوذ باللہ یہ نبی کا رونا حقیقت پہ نہیں بنتا, ناٹک بنتا ہے. حقیقت نہیں بنتا. ایک بندہ دیکھ بھی رہا ہے پھر بھی رو رہا ہے, تو اسے تو پتہ ہے یہ یہاں ہے, کف دست کی طرح دیکھ رہا ہے. تو ہر نبی کا رونا حقیقت پر مشتمل تب بنے گا جب اس نجس عقیدے کا انکار کر دیا جائے. اس کو میں نجس کیوں کہ میں آخر میں جا کے حوالہ دیتا ہوں. حاضر ناظر کے لیے عمر اچروی اور احمد رار خان گجراتی کا قلم کہاں تک چلا ہے. چلو یہاں بتا دو, پھر آپ کہیں گے پتہ نہیں وہاں کیا. یہ آپ جعل حق دیکھ لیں اور مقیاس حنفیت دیکھ لیں. زوجین کے جفت کے وقت بھی یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول حاضر اور ناظر ہوتے ہیں. تو میں اس کو اور کیا نام دوں اس عقیدے کو, اور کیا نام دوں جب آپ یہ چیز بھی کہیں. راتوں کو چھپ کر کمروں میں جو کام کیے جاتے ہیں تاریک راتوں میں, وہ بھی نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک, یہ لفظ ہے ان کے. تو کہاں جائے گا بندہ؟ تو یہ عزت والا عقیدہ ہے ابھی. تو یہ پورا واقعہ بتا رہا ہے ہر جگہ نبی حاضر ناظر نہیں ہوتا. اور اس سے آگے چاہیں بھائیوں کی ملاقات ہوئی ہے,
ٹھیک ہے. اور یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اتار کے دی ہے, ابو کے چہرے پر ڈال دیں, یاتی بصیرہ, کس پر ڈال دیں؟ چہرے پر. تو اس کا معنی ہے یوسف علیہ السلام نبی بھی ہر جگہ نہیں ہے, ورنہ کہے اور تم تو دیر سے جا کے ڈالو گے, ابھی اسے ابو کی تکلیف ختم کر دو, یہ چہرے پہ آ گئی, بھیجا کیوں ہے؟ ابھی سے دے دیتے نا. ٹھیک ہے. اور ادھر پھر بیٹھے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام, انی لاجد, حضرت یعقوب انی لاجد ریح یوسف, آپ مجھے غلط نہ کہو تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یہ 40 سال سے رکی ہوئی تو کہتا ہے مختار کھول لے, یہ آج کیوں آ رہی ہے؟ کس بنیاد پر کہا گیا ہے؟ تو یہ واقعہ یقین مانے میں آیات قرآنیہ دیکھتا ہوں جیسے اتری ان کے لیے ہو. ایک بندے نے مجھے کہا رضا خانیت کے لیے کتاب, میں نے کہا ایک مولوی صاحب نے کہا صرف قرآن پاک رکھ لو. تو اس پر یہ آیات ہیں جو قرآن کریم کی آیات بتاتی ہیں. یہ آدھا درجن کی آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی. احادیث پر آئی ہے, تو احادیث میں صحیح مسلم کے اندر ایک واقعہ موجود ہے. آپ ذرا مجھے دیکھیں, میں وہ واقعہ آپ کو سمجھائے دیتا ہوں. معراج سے واپس ہوئے اللہ کے رسول, بیت اللہ کے اندر تشریف فرما ہے, اور حضور نے اعلان کیا میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں, آسمانوں سے ہو کر آیا ہوں. ابو جہل اینڈ کمپنی منکر بن گئی ہے, اور انہوں نے ایک مفروضہ حضور کے سامنے پیش کیا ہے کہ نبی اس کا جواب نہیں دے پائیں گے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بولیے, بتائیں بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں, دروازے کتنے ہیں, روشن دان کتنے ہیں؟ حالانکہ جو بندہ کہیں وزٹ کے لیے جاتا ہے وہ روشن دان اور کھڑکیاں گننے نہیں جاتا. میرا تعلق حضرت استاد جی سے 2005 کے اینڈ اور 2006 کے سٹارٹ سے ہے. آج 12-13 سال ہونے لگے, مجھے آج بھی نہیں پتا مرکز اہل سنت میں بلب کتنے ہیں, اس میں کھڑکیاں کتنی ہیں, اس میں پنکھے کتنے ہیں, ہمیں بھی نہیں پتا. تو آپ مجھے کہیں گے تو مرکز سے ہو کر نہیں آیا, یہ کیسی باتیں ہیں؟ اس طرح کے بے وقوفانہ مشرک کی عقل الٹی ہوتی ہے نا, تو اس نے بھی الٹا مسئلہ پیش کر دیا. ابو جہل اینڈ کمپنی, بتاؤ کھڑکیاں کتنی ہیں, دروازے کتنے ہیں, اس کے روشندان کتنے؟ اللہ کے رسول کا لفظ صحیح بخاری میں موجود ہے, صحیح مسلم میں موجود ہے, کتاب الایمان باب الاسراء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, اور صحیح بخاری میں بنیان الکعبہ کے تحت حدیث و اسراء کی روایت موجود ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فقربت قربۃ ما قربت مثلہ قط, ان کا سوال آیا نا, جب سے میں پیدا ہوا آج تک میں اتنا پریشان ذہنی طور پر کبھی نہیں ہوا جو اب ہو گیا, کہ یار میں تو ان کے سامنے دعویٰ پیش کر رہا ہوں, میں ہو کر آیا ہوں, اور اب اگر میں کھڑکی نہ بتا پاؤں اس موقع پر, میں ان کو روشندان نہ بتا پاؤں, ان کو دروازوں کی تعداد نہ بتا پاؤں, تو یہ تو جھٹلانا شروع کر دیں گے, اور بے وقوف عوام کے سامنے تو ایک دلیل آ جائے گی, اگرچہ ہوگا ڈھکوسلا لیکن دلیل آ جائے گی. تو حضور فرماتے میں پریشان ہوا, میری پریشانی کو دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آئی. فرفعہ اللہ لی انظر الیہ ما یسألون عن شیء الا انبأتهم بہ, اللہ نے بیت المقدس قدرت کاملہ کے تحت اٹھا کر سامنے کر دیا, یہ جس جگہ کا سوال کرتے وہ جگہ سامنے آتی, میں گن لیتا اور ان کو جواب دیتا چلا جاتا. خطیب اتنا بیان کرتا ہے. اب میں وکیل کی وکالت پیش کر رہا ہوں. فقربت قربۃ ما قربت مثلہ قط, میں پریشان ہوا آج تک نہیں ہوا. یہ پریشان کیوں ہوئے؟ اگر عالم الغیب ہے, حاضر ناظر ہے, تو کہے کھڑو کھڑو, 1 2 3 4 5 دروازے کہہ دینا, پھر بندہ پھر تو دیکھ رہے ہیں ہر جگہ کف دست ہے, پھر پریشان کیوں ہوئے؟ ذرا یہ پریشانی کی تشریح, فوراً پین نکالیں, ذرا یہ پریشانی کی تشریح حضرت ماشاءاللہ کچھ علوم سے فائدہ ہمیں بھی دے, ذرا کر لینا تشریح. ان کا کام نہیں ہے پریشانی کی تشریح کرنا, یہ کس بنیاد پہ پریشانی کی تشریح کریں گے؟ سید عائشہ کی روایت کتاب المغازی باب فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا, جلد نمبر 2 صفحہ 663, طبع قدیمی کراچی, صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت اماں فرماتی ہے میرا ہار گم ہو گیا, سارے پریشان ہو گئے. حضور علیہ السلام ٹھہر گئے ہیں, ہار کی تلاش کرو, ہار کی تلاش کرو, ہار نہیں مل رہا, ہار نہیں مل رہا, ہار نہیں مل رہا. آخر حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہوئے, غصہ کیا اپنی بیٹی کو آ کر, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے غصہ کیا ہے اور کہا تیری وجہ سے یہ ہو رہا ہے. کہتے فبعثنا البعیر الذی اقتطعت, ہم نے دیکھا کہ جب اونٹ کو آخر میں اٹھایا تو ہار نیچے پڑا ہوا تھا. تو اگر حضور ہر جگہ کف دست کی طرح دیکھ رہے تو فرماتے اونٹ کو اٹھاؤ یار, آئندہ تلو حضرت عائشہ دا ہار پہ چک لو, اٹھا لو. ہوئے حضور علیہ السلام کیوں رکیں, کیوں رکیں؟ ایک رضا خانی نے ڈھکوسلا مارا اور پھنس گیا اسی حدیث کے اندر. کہنے لگا حضور اس لیے رکے تھے کہ تیمم کا حکم آ جائے, تیمم کا حکم کے لیے رکے تھے. میں نے کہا صحابہ کرام نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں, تیری بات مولویوں کی سچی ہے, کیوں؟ میں نے کہا صحیح بخاری کی یہی روایت تیمم والی, ذرا اٹھا
हजरत साहबा फरमाते हैं फ़अक़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमासा, हुजूर हार के तलाश के लिए रुके थे। अगर तू कहेगा हो सकता है साहबा को पता ना हो, मैं कहूंगा साहबा फिर आलिमुल गैब नहीं थे, तू था, फिर उधर फंसेगा। इसलिए बात वो कर जो बात बनने वाली हो, ठीक है। इन्हें गल बढ़ती कोई नहीं, ऐसे फिर बात बनती नहीं, फिर लल्लो बत्तो होता है। फिर बात वो होगी जो बात बननी चाहिए। साहबा कहते हैं तिमासा, हार की तलाश के लिए हुजूर रुके। ये सही बुखारी है, जिस किताब को पढ़ के 8वें साल तुम सर पे पगड़ी बांध लेते हो, ये और बांधते हो कि रंग वो होता है जिसकी आंख खराब हो तो वो रंग आंख पे रख दिया जाता है, रंग कोई और होता है, लेकिन बांध तो लेते हो इसी को पढ़ के ना। तो जब आप बांध लेते हैं तो फिर मैं आपसे पूछूंगा सही बुखारी में तो हुजूर तलाश के लिए नहीं, तलाश के लिए रुके थे, ये और बात है। रुके तलाश के लिए थे, आयशा की अजमत की वजाहत के लिए अल्लाह ने तयम्मुम को हुक्म उतार दिया था, ये और बात है। तो लेकिन इधर भी कफे दस्त की तरह देखने वाली बात बनती नहीं है। सही बुखारी किताबुल अतइमा जल्द नंबर 1 बाब माकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबु यअकुलून, सफ़ा नंबर 8, जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 814 815, तबा कदीमी कराची। हजरत अबी हाजिम रजी अल्लाह तआला अन्हु ताबी हैं, अपने उस्ताद हजरत सहल इब्न साद रजी अल्लाह अन्हु सहाबी से पूछते हैं हल अकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक़िया, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छलनी से, जैसे हम सराय की जाते हैं परूण, छलनी से जिससे आटा छना जाता है, ये खाया था या छान वाला आटा खाया था? उन्होंने फरमाया मारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक़िया। इसके आगे बात में मारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनखला, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तो छलनी देखी भी नहीं थी, देखी भी नहीं थी। उस जमाने में तो सहूलियात नहीं थे, आटा वही खाया जाता था जिसमें छान मौजूद होता था, तो वो तो सख्त रोटी होती थी। ये किताबुल अतीमा में पैगंबर की रोटी बयान की जा रही है और इससे अकीदा निकल आया कि हुजूर ने तो छलनी देखी ही नहीं थी। तू कह रहा है पूरी कायनात को हर वक्त कफेदस्त की तरह देख रहे हैं। जरा इस सहाबी की रिवायत को झूठा नऊजुबिल्लाह होना साबित होता है तेरी इस बात से। सहाबी की रिवायत तो सच्ची है, झूठ आपकी बात का बन जाएगा, तो यहां देखने वाली बात कहां आएगी? इसलिए बात नहीं हो सकती। और एक रिवायत मैं आपकी खिदमत में वलीमे वाली पेश कर देता हूं, ठीक है, जरा वो भी सुन लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह फरमाया, ठीक है। ज़ैनब बिन्त जहश का वलीमा शुरू है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने वलीमा खिलाया है। कब? सहाबा कहते फदअ अन्नास लिताआमिन बाद इर्तिफाइन नहारी फजला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलस मअहु रिजाल। हुज़ूर भी बैठ गए, सहाबा भी बैठ गए। जब निस्फुन नहार हो गया, आधा दिन हो गया, आधा दिन के वक्त वलीमा शुरू हुआ। पता चला ये जो टाइम है ना वलीमे का 11 बजे था 2 बजे, ये बाद इर्तिफाइन नहार से साबित है। समझ आया? तो ये बाद इर्तिफाइन नहार, ये दूसरे दिन, ये दिन का वलीमा जो हम कहते हैं ना शब ज़फ़ाफ़ के बाद सुन्नत है, वरना पहले तो वैसे ही एक दावत है। तो ये बाद इर्तिफाइन नहार ऐसे लफ्ज़ नहीं है। इर्तिफाइन नहार दिन चढ़ने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निस्फ़ुन नहार के बाद जाकर ये वलीमा खिलाया। तो हुज़ूर बैठे हैं, सहाबा बैठे हैं। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में कुछ नए सहाबा है, वो बैठ गए हैं। खाना खाने के बाद गप्पें शुरू हैं। हुज़ूर आए हैं, अभी उठे नहीं उठे, फिर चले गए, फिर आए हैं, उठे नहीं उठे, फिर चले गए, फिर आए हैं, ये लोग उठे नहीं उठे, फिर चले गए। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत उतार दी, फ़इज़ा तयम्तुम फंतशिरू वला मुस्तअनिसीन लिहदीस फ़यस्तहयिन नबी, आप अलैहिस्सलाम को फ़यस्तहयी मिनकुम वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक़। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को तकलीफ हो रही थी, आपने खाना खा लिया, उठ के चले जाओ। पैगंबर के कोई अपने घरेलू उमूर होंगे, आप क्यों बैठ गए? आइंदा ऐसा मत करना, जब पैगंबर खाने के बोले खा चुको तो चले जाओ, ये अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो आप मुझे बताएं, हुज़ूर बार बार आ रहे हैं देखने के लिए, बैठे हैं, अच्छा बैठे, फिर चले गए, फिर आ रहे हैं, अभी बैठे हैं, फिर चले गए, आ रहे हैं, अभी बैठे हैं, फिर चले गए। तो हुज़ूर तो कफ़े दस्त की तरह देख रहे थे, अंदर ही से देख लेते, बार बार आए क्यों हैं, बार बार आए क्यों हैं? तो अंदाजा लगाएं ये किस हद तक का जो है ना अजीब किस्म का वो है, क्या बात है, अकीदा है। सुनन नबी दाऊद किताब निकाह बाब मा यकरहु मिन ज़िक्र रजुल, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 295, तबा HM सईद कंपनी कराची। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि मेरा कबीला दौसी है। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तलाश किया तो मैं नहीं था, तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने 3 बार मेरे लिए फरमाया मन अहस्सल फताअत दौसिया, मन अहस्सल फताअत दौसिया, मन अहस्सल फताअत दौसिया। ये 3 बार अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया,
وہ قبیلہ دوس کا جو نوجوان آیا ہے آپ نے ان کو دیکھا ہے کہاں ہے، وہ کہاں ہے؟ 3 بار حضور نے میرے لیے ارشاد فرمایا، پھر جو پتہ چلا تو میں آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فخر کے لیے شکر کے لیے بات پیش کرتے، دیکھو حضور نے 3 بار میرے نام کو ارشاد فرمایا۔ تو اگر حضور ہر کسی کو دیکھ رہے تھے تو پھر پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کف دست والا معاملہ کہا جائے گا، اس کا معنی حضرت ابو ہریرہ کا بھی عقیدہ یہ نہیں تھا۔ اور یاد رکھیں صحابہ کرام کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ علیہ السلام سورۃ التحریم کا پہلا رکوع لے آؤ، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یہ اٹھائیں۔ ادھر حضرت حضرت اماں حفصہ کو بات پتہ چلی ہے، انہوں نے اماں عائشہ کو بتا دیا، حالانکہ حکم تھا کہ نہ بتانا، انہوں نے بتا دیا۔ یہ اور بات ہے، آیت اتری ہے پھر ان کا یہ معاف ہو گیا معاملہ، لیکن انہوں نے بتا دیا ہے اور رسول اللہ کو اللہ نے بتا دیا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے کہا، فرمایا حفصہ کیوں بتایا؟ اب حفصہ حیران ہو گئی، نے کہا من انبا کہا، آپ کو کس نے بتایا؟ قال نبانی العلیم الخبیر، مجھے میرے اللہ نے بتایا۔ ذرا اس سوال اور جواب کے اندر ایک نکتہ لے، اگر حضور ہر جگہ کف دست کی طرح ہر کسی کو دیکھ رہے تھے تو عقیدہ تو تھا، تو پھر اماں حفصہ کا بھی تو عقیدہ ہونا چاہیے، حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر اماں عائشہ کو کیوں بتایا ہے؟ پھر تو نہ بتاتی نا، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے تو حضور دیکھ رہے ہیں۔ نہ دیکھنے والا عقیدہ تھا تو تبھی بتایا، اگر دیکھنے والا عقیدہ ہو تو پھر تو یہ تو زیادتی بن جائے گی، پھر تو خطا بنتی بھی نہیں ہے، پھر تو نافرمانی صراحت بن جائے گی، پھر آپ فتوے کا کیا بات کرو گے؟ تو اسی وجہ سے نہ دیکھنے والا مسئلہ تھا کہ ہر جگہ نہیں دیکھ رہے، ہر جگہ دیکھ رہے ہوتے تو من انبا کا حاضہ تو نہ پوچھتے نا، آپ کو کس نے بتایا؟ وہ تو کہتی آپ دیکھ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے۔ تو صحابہ کرام کی بھی یہی عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ غار ثور پہ کیا کہا تھا جب کافر پہنچے اور اس کے قدم دیکھنے لگ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگے، لو ان احدہم نظر الی قدمیہ ابصر نحتاتک، یہ یوں کر کے اپنی جسم کی طرف، اپنے قدم کی طرف انہوں یوں نظر کیا اور غار میں ان مشرکین نے میں دیکھ لیا تو غار ثور میں آپ اور میں بیٹھے ان کو نظر آ جائیں گے۔ ہر جگہ دیکھ رہے والی بات کہاں تھی؟ ہر جگہ اگر حضور موجود تھے اور دیکھ رہے تھے تو پھر اس غار میں کیسے آئے تھے؟ اذ ہما فی الغار، اللہ فرماتے جس وقت غار میں تھے، اگر ہر وقت غار میں ہوتے تو یہ لفظ اذ تو نہ آتا نا، جس وقت تھے، اس کا معنی ہر وقت تو نہیں تھے۔ تو صحابہ کرام کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہر جگہ نہیں ہے۔ مشکات شریف جلد نمبر 2 کے اندر صفحہ نمبر 224 کے اندر حضرت جابر کی روایت ہے، حضرت جابر سے کسی نے پوچھا رسول اللہ مدینہ منورہ کتنا عرصہ رہے، پھر کب حج کیا؟ انہوں نے کہا مکث بالمدینہ 9 سنین لم یحج فیہ ثم اذن فی الناس بالحج فی العاشرہ۔ حضور پاک علیہ السلام 10 سال مدینہ رہے، 9 سال تک حج کا سفر نہیں کیا، 10ویں سال حج کیا۔ 9 سال تک حج کا سفر نہیں کیا، حج کے لیے مکہ، رہنے کے لیے مدینہ ہے۔ اگر ہر جگہ تھے تو پھر سفر کیوں نہیں کیا؟ وہاں بھی تھے اور یہاں بھی تھے نا۔ یہ مکث بالمدینہ 9 سنین، حضرت جابر کا لفظ کہاں جائے گا کہ مدینہ 9 سال رہے ہیں؟ پھر تو ہر سال حضور پاک علیہ السلام کی سال کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ تھے۔ اور ایک بات میں انہی کے گلے کی فٹ کر دوں، فضائل دعا، یہ احمد رضا کے والد محترم کی کتاب ہے، نقی علی خان صاحب کی، اس میں انہوں نے حضرت ربیعہ بن وقاص رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ذکر کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 موقع پر دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک رجل فی فلاتن، وہ آدمی جو جنگل کے اندر موجود ہو اور دعا اللہ وحدہ، اور اکیلا ٹھہر کر اللہ کو پکارے اور اللہ کے سوا اسے کوئی نہ دیکھے اور وہ نماز پڑھے اس ٹائم پر، اس وقت اس کی دعا رد نہیں کی جاتی کہ وہ خالص اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے۔ کسی ایسی جگہ، جنگل کی قید اتفاقی ہے، ٹھیک ہے، کمرہ اکیلا ہو پھر بھی ہو سکتا ہے جہاں کسی کو نہ پتا ہو، تو اکیلی جگہ جہاں اللہ کے علاوہ اسے اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو، یہ احمد رضا کا ابو جی کہہ رہا ہے، وہ اکیلا ہو جا، اللہ کے علاوہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، آپ کہتے ہو کف دست کی طرح دیکھتے ہیں، ابو جی کی اصلاح کیجیے ذرا، پھر اس پر کوئی فتویٰ ڈالیے، اس پر آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ آپ تو کہتے ہیں کف دست کی طرح حضور ہر کسی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ فضائل دعا، اس کا صفحہ نمبر 225 جو ہے، اللہ کے علاوہ اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو دعا قبول ہوتی ہے، تو اس کا معنی یہ پھر نعوذ باللہ اس حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا، پھر حضور تو ہر وقت ساتھ دیکھ رہے ہیں، تو پھر ایسا آدمی کوئی نہیں ہے جو یہ فضیلت پا سکے کہ اکیلا بھی ٹھہرے اور دعا مانگے اور اللہ اسے اللہ کے علاوہ تو کوئی اور دیکھ رہا ہے، پھر تو دعائیں قبول ہونے والی، یہ شک ہی ختم ہو گئی۔ اور اگر یہ عقیدہ مانے تو حدیث کی شکیں جیسے قرآن کی شکیں نعوذ باللہ منسوخ ہوتی تمہارے عقیدے سے نظر آ رہی ہیں، تو پھر ادھر مسئلہ بھی یہی ہو جائے گا۔
और वो मैंने दो बातें जो पेश की हैं अहकामुल कुरान जस्सास से, ये भी अपने जहन में रखना। और इसके साथ एक बात मैं मजीद आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, ये अकीदा अदब नहीं है, बेअदबी है। इजाल हक वज़ा कल बातिल अल मारूफ भी फैसला कुल मसाइल, फैसला मसाइल जिल्द अव्वल सफ़ा 72, बास इल्म गैब, दूसरी फसल, नईमी कुतुब खाना गुजरात, मुफ्ती अहमद यार गुजराती कहते हैं तारीक रातों में तन्हाई के अंदर छुप कर जो काम किए जाते हैं वो भी निगाह मुस्तफ़ा से पोशीदा नहीं है। आप मुझे बताएं किसी बंदे का वो चरसी से चरसी आदमी क्यों ना हो, हफीमी और पोडरी आदमी क्यों ना हो, निशाई आदमी क्यों ना हो, उसे पता हो तारीक रातों में मैं घर वालों के साथ सोया हूं, मेरा बाप मुझे देख रहा है, तो अपने बाप के एहतराम में घर वालों के पास नहीं जाता। और तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एहतराम माना है, तूने ये माना है कि तारीक रातों में निगाह मुस्तफ़ा से ये काम भी पोशीदा नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं, किसका मामला पेश कर रहे हैं, कौन सी बेअदबी उम्मत को सिखा रहे हैं। ये मिक़यास हनफियत हिस्सा हाजिर और नाजिर सफ़ा नंबर 282 स्वयं तबा इंशा प्रेस उर्दू बाजार लाहौर से छपी है। मौलवी मोहम्मद उमर इचवी कहते हैं ज़ौजैन के जुफ्त के वक्त भी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम हाजिर और नाजिर होते हैं। यार ये थोड़ा आगे भी मामला चला है, उन्होंने अपने पीर के लिए भी लिख दिया है कि पीर साहब कह रहे थे तू एक बीवी के साथ दूसरी बीवी की मौजूदगी में सोया हुआ था, ये अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा पीर साहब आपको कैसे पता है कि मेरी दो बीवियों में दो कमरों में ऐसा ही हुआ था। कहा एक चारपाई फारग पड़ी थी, का जी हाँ, का उस पर मैं बैठा नजारा कर रहा था। ठीक है, किस तरह की बातें आप पेश कर रहे हैं जनाब मन, थोड़ा सा कुछ बंदा समझे ये किस मसले पर आप उम्मत को लेकर जा रहे हैं। जब हम ये बात करते हैं, जब हम ये बात इनके सामने पेश करते हैं तो एक एतराज आता है, वो इश्काल क्या है, बरेलवी कहते हैं अल्लाह भी तो हर चीज को देख रहे हैं, अल्लाह भी तो हर चीज को देख रहे हैं, तो अल्लाह का देखना गुस्ताखी नहीं है। अगर हम कह दें नबी देख रहे हैं तो नबी का देखना गुस्ताखी है। तो आपने कहा जनाब मन फला तजरिबू लिल्लाहिल अमसाल, सूरत नहल आयत नंबर 74, सूरत शूरा आयत नंबर 11, लैसा कमिस्लिही शै, फरमाया अल्लाह की तरह तो कोई चीज नहीं है। जब मखलूक की बात हो फला तजरिबू लिल्लाहिल अमसाल, फिर अल्लाह की मिसालें नहीं दिया करते। तो अल्लाह की मिसाल तो आती नहीं है, मखलूक पर मखलूक की मिसालें ले आए। पता चला तेरा घड़ांतू अकीदा दुनिया में चल नहीं सकता था, तू डायरेक्ट अल्लाह पे गया और वहां की दलील लेकर आया है ना। कोई मखलूक की दलील होती तो आप वो भी ले आते। जनाब मोहतरम ये अल्लाह का मामला है, वो हर जगह हो, ये मखलूक का मामला नहीं है। उस पर एक दो शुबे मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, जरा ये सुन लें। कहते हैं कुरान करीम ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को गवाह फरमाया। ये सूरत नंबर 33 सूरत अज़ाब आयत नंबर 45, इन्ना अरसलना का शाहिदा, तवज्जो, गवाह फरमाया। जरा इसका जवाब भी समझें। हमने कहा जी ठीक है गवाह फरमाया, फिर इस पर क्या हुआ। कहते हैं बात यह है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम गवाह है और गवाह के लिए तो हाजिर नाजिर होना शर्त है। मैंने कहा बरेलवियों बेचारो ये बात मत करो, गवाह के लिए हाजिर नाजिर होना शर्त है, और अगर यही बात है तो मुझे हाजिर नाजिर माना हर जगह। अजी आपको क्यों हाजिर नाजिर मानो। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन नास, सूरत बकरा आयत नंबर 143 दूसरे पारे का पहला सफा, सूरत नंबर 2 सूरत बकरा। अल्लाह फरमाते हैं मैंने पूरी उम्मत को पिछली उम्मतों पर गवाह बनाया। तो पूरी उम्मत में तो मैं भी शामिल हूं, मुझे भी गवाह हर जगह हाजिर नाजिर मान, पूरी उम्मत को हर जगह हाजिर नाजिर मान। हम भी ने तो क़यामत में गवाही देनी है। कहते हैं आप लोग तो गवाही देंगे, शरीयत से आपने मसाइल पढ़े हैं, आप तक इत्तला आई है, आप इस बुनियाद पे गवाही देंगे। मैंने कहा पता चला गवाह के लिए हाजिर नाजिर होना शर्त नहीं है, इल्म शर्त है। गवाह के लिए तो इल्म यकीनी शर्त है ना। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के पास भी फरिश्ते उम्मत की बातें ले जाते हैं, आमाल ले जाते हैं, हुज़ूर पर पेश करते हैं। और फरिश्ते ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून, 28 पारे का आखिरी सफ़ा। फरिश्ते वो हैं जो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, तो उनकी खबर यकीनी खबर है, ज़न्नी खबर नहीं है। अर्ज़ आमाल की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल गवाही पेश फरमाएंगे। ये जब तक दुनिया में थे तो देख रहे थे, ये दोनों तफसीरात मौजूद हैं। आपने गवाह के लिए हाजिर नाज़िर होने की बात कहाँ की है। एक बात मैं और आपकी खिदमत में पेश करूं, अगर गवाही देने वाला हर जगह हाजिर नाज़िर होता है तो हर मुअज़्ज़िन और हर मुकब्बिर को जो इकामत कहता है या अजान देता है उसको भी हाजिर नाज़िर मानो, क्योंकि वो कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अल्लाह है और अल्लाह अकेला है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल है। ये गवाही दे रहा है और तू कह रहा है गवाही जो दे वो उसके लिए हाजिर नाजिर होना जरूरी है, हर जगह देखना जरूरी है। तो मान दुनिया के तमाम मुअज़्ज़िन हर जगह हाजिर नाजिर है और फिर खाता बन जाएगा ना। और अगर तमाम मुअज़्ज़िन हर जगह हाजिर नाजिर है तो फिर यक्के मुअज़्ज़िन दी तनख़्वाहियां खत्म थी।
پھر مؤذن کی تنخواہ ختم ہوتی ہے، ہر جگہ ایک حاضر ناظر ہے، ایک جگہ اذان دے گا پھر سب کی ہو جائے گی نا. یہ چمٹے ہوئے ہیں اپنی اذانوں پہ، نہیں ہم نے تو دینی ہے. میں حیران ہوں ان کی اذان پر، بجلی ہو تو صلاۃ و سلام ہے، بجلی چلی جائے تو بغیر صلاۃ و سلام کی اذان ہے. پتہ نہیں کون سے مؤذنین ہیں. تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے کہ جو گواہی دے وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے ہیں، یہ معاملہ نہیں چل سکتا جناب محترم. ایک بات میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورۃ انبیاء نمبر 107 کا اللہ رب العزت نے تو حضور کو فرمایا آپ تمام جہان کی رحمت ہیں. میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں رحمت ہر جگہ، تو حضور بھی ہر جگہ. میں نے کہا قرآن کریم میں ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا. اللہ فرماتے سورۃ یونس آیت نمبر 5 میں نے سورج کو روشن بنایا ہے. سورج کی روشنی ہر جگہ، تو سورج بھی ہر جگہ. کہتے ہیں نہیں، سورج ایک جگہ ٹھہر کر روشنی پھیلاتا ہے. حضور پاک علیہ السلام مدینے میں رہ کر نبوت کے علوم کو دنیا میں پھیلا دیا ہے. حضور جو رحمت ہو وہ ہر جگہ ہوتی ہے. ایک عورت کا نام تھا رحمت بی بی، تو میں نے کہا یہ رحمت بی بی بھی ہر جگہ ہے. تو آپ کیسے کہتے ہو جو رحمت ہے وہ ہر جگہ ہے؟ تو رحمت ہر جگہ ہے تو پھر بندہ اصل بھی ہر جگہ ہے، یوں نہیں ہو سکتا. شیطان اور اسرائیل بھی تو حاضر ناظر ہیں، یہ شبہ ہمارے اوپر پیش کرتے ہیں. میں نے کہا جھوٹ ہے. کون کہتا ہے شیطان اور اسرائیل ہر جگہ ہے؟ شیطان یا شتونگڑوں سے کام لیتے ہیں، اپنے چھوٹے شیطانوں سے، ان کو بھیج کے کام لیتے ہیں. اور اسرائیل کی تو سپیڈ اتنی ہے، وہ بیک وقت ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. آپ نے اس پر واقعہ نہیں سنا؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے اور ایک بندہ یوں بیٹھ کر دیکھ رہا ہے. انہوں نے کہا حضرت مجھے ڈر لگتا ہے، میں تو یہاں بیٹھا ہوں مصر میں، آپ مجھے پہنچا دیں. انہوں نے ہوا کو حکم کیا، اس نے اڑایا اور اس نے فانن جا کر وہاں پہنچا دیا ہے ہندوستان میں. اور وہ جو دیکھنے والا بندہ تھا وہ دراصل اسرائیل تھا، وہ بھی وہاں پیچھے پہنچ گیا، اس نے روح نکال لی ہے. تو حضرت سلیمان کے پاس واپس آیا تو کیا بنا؟ کہا آپ اسے دیکھ رہے تھے؟ کہا میں اس لیے دیکھ رہا تھا، اس کے قبل کا کچھ ٹائم بعد کا حکم مجھے ہندوستان کی سرزمین پہ ہوا ہے، یہ تو مصر میں بیٹھا ہوا تھا، انتظام وہ وہاں پہنچ گیا، یہ بھی وہاں پہنچ گیا. اس کی تو سپیڈ تیز ہے، آپ اس کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے. دوسری ان کی سپیڈ تو شریعت میں موجود ہے لکھی ہوئی جناب من. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ لکھا ہوا ہے ایسے؟ کہیں ثبوت ہے؟ کہ جی حضور کا تو نہیں ہے. پھر آپ یہ گرام تو بات کہاں سے لائے ہیں؟ اس لیے اس کا بھی ذرا ثبوت لے کر آئے. اور شیطان اور اسرائیل ہر جگہ ہیں، یہ بات علماء دیوبند نے نہیں کی. یہ آپ وہ اٹھا لینا انوار فاتحہ در بیان مولود و فاتحہ، عبدالسمیر رام پوری نے یہ بات کی ہے. اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں، یہ آپ ہی کے گھر سے نکلی ہوئی بات ہے، یہ ہمارے ہاں کی بات نہیں ہے. اور ایک شبہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ اکثر طور پہ اس شبے کو پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں قرآن کریم میں علم ترا، آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ تو حضور کو اللہ نے ہر جگہ کہا علم ترا، آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ تو حضور ہر جگہ تھے، تو اللہ رب العزت نے علم ترا کہہ دیا. علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ تو پیدائش سے 55 اور 50 دن پہلے کی بات ہے. تو حضور تو دیکھ رہے تھے. میں نے کہا پھر قرآن کریم میں اگر علم ترا سے دیکھنا مراد ہے تو ایک آیات اور بھی ہے، سورۃ نوح آیت نمبر 15، علم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. اللہ پوری امت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا میں نے آسمان کیسے پیدا کیا؟ تو کیا پوری امت آسمانوں پہ جا کر حاضر ناظر ہو گئی ہے؟ یہ سورۃ انعام آیت نمبر 6 میں ہے، اولم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ ان لوگوں نے نہیں دیکھا ہم نے بستیوں کو کیسے ہلاک کر کے رکھ دیا ہے. اس میں تو پھر پوری امت کافر اور مسلم حاضر ناظر بنتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، علم ترا کا یہاں معنی ہے علم کی بنیاد پہ، علمی رویت، علمی طور پہ دیکھنا. میں نے کہا علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں بھی یہی معنی ہے، علمی طور پر دیکھنا. آپ کو یقین پتہ چل گیا، آپ نے دیکھ لیا. تو جناب من اعتراض کرتے وقت بندہ کچھ نہ کچھ دیکھ لیا کرے کہ معاملہ کیا ہے. کہتے ہیں قرآن کریم سورۃ احزاب آیت نمبر 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومن کے جانوں کے قریبی ہیں حضور پاک علیہ السلام. تو حضور تو مومن کے جان کے قریب ہیں. قرآن کہتا ہے وازواج امہاتہم، بیویاں نبی علیہ السلام کی مومن کی مائیں ہیں. تو آپ کہتے ہیں نبی قریب نہیں ہے، تو نبی کو تو قریبی کہا گیا ہے. میں نے کہا جناب من قریبی ہونا اور ہے، قریب ہونا اور ہے. یہ جو کہتے ہیں نا یہ فلاں آدمی ہمارے صدر محترم کا قریبی ہے، اس سے سفارش کرو، اس کا یہ معنی نہیں ہے اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اس کا یہ معنی ہے اس کے تعلقات اس کے ساتھ بہتر ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. نہیں بعض جگہ خطاب کہا گیا ہے. میں نے کہا خطاب کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے. میں ادھر ہوں اور مفتی عمر صاحب کراچی میں خط لکھتا ہوں، مفتی صاحب کیا حال ہے، السلام علیکم، آپ اچھے ہیں، میں خطاب کر رہا ہوں. یہ حاضر ناظر تو نہیں ہے. اس کا مطلب جب تک اس تک بات جائے گی تو اس وقت یہ اس کو پڑھ لے گا. تو یہ بھی معاملہ ایسے ہے، یہ قریبی ہے، یہ خط لکھ کر دے گا، اس تک جب بات پہنچے گی تو بات معاملہ سامنے آ جائے گا. آپ نے اس سے کیسے نکال لیا؟ کسی کا قریبی ہونا
किसी से ताल्लुकात मजबूत होना, यह हर जगह हाजिर नाजिर की बात नहीं है। एक शुबह और पेश करते हैं, कहते हैं कब्र में फरिश्ता कहते हैं मा तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, इस शख्स के बारे में आप क्या कहते हो? मन नबीयुक का तर्जुमा है। तो हाज़िर रजुल, हुजूर को तो हाज़ा फरमाया गया, और हाज़ा तो करीब वाले को कहते हैं। मैंने कहा आपको अकीदा नहीं आता था, कुरान नहीं आ रहा था, हदीस नहीं आ रही थी, इजमाए उम्मत के मसाइल नहीं आ रहे थे, तो कम से कम अरब की लुगत तो पढ़ लेते कि हाज़ा करीब के लिए आता है या हाज़ा बईद के लिए भी किसी सूरतों में आता है, तो कोई चीज़ तो आप देख लेते। ये सूरत अनआम आयत नंबर 76, 77, 78 उठा लो, तो हाज़ा का इस्तेमाल क्या करीब के लिए हुआ है? फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा काला हाज़ा रब्बी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सितारे को देख के कहते हैं क्या ये मेरा रब है? फलम्मा रअल कमर बाज़िगन काला हाज़ा रब्बी। चांद को देखकर कहा क्या ये मेरा रब है? फलम्मा रअल शम्स बाज़िगतन काला हाज़ा रब्बी। सूरज को चमकते देख के फरमाया क्या ये मेरा रब हो सकता है? तो हजरत इब्राहिम ने तो सूरज, चांद और सितारे के लिए हाज़ा का लफ्ज बोला है, वो करीब तो नहीं है, वो तो दूर है। आप कहते हैं करीबी के लिए, करीब के लिए हाज़ा का लफ्ज बोला जाता है, तो दूर के लिए भी तो बोला जा रहा है। जैसे सूरज चांद सितारे दूर हैं, तो फिर उसके लिए कहते ठीक है दूर हैं, लेकिन दूर होने के बाद ये नीचे है, वो बहुत ऊपर है, लेकिन पर्दे दरमियान से हट गए हैं, दरमियान से आड़ को हटा दिया गया है, बराह रास्त देखा जा रहा है। तो इस वजह से हाज़ा का लफ्ज दूर वाले के लिए भी कह सकते हैं। मैंने कहा कब्र पे मौजूद है, एक तशरीह उलमा ने की है, पर्दे हट गए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बयान किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो दूर वाले के लिए भी लफ्ज हाज़ा कहा जाता है। नंबर 2 बात यह है कि बाज़ औक़ात ऐसे कहते हैं हुजूर फिर ज़हन में मौजूद होती है, तू इसके लिए क्या कहते हैं? तू इसके लिए क्या कहता है? जो ज़हन में बात है तो उसके लिए हाज़ा का लफ्ज बोलते हैं, हालांकि वो तो किसी और की बात हो रही है। और बाज़ औक़ात ये और वो, ये लफ्ज एक दूसरे पे आए तो इज्जत के लिए भी आते हैं। होता ये है उसे कहते वो है। कुरान में ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिका का माना तो वो होता है, तो तर्जमा करते हैं ये किताब वो है जिसमें शक नहीं है, हालांकि कहना चाहिए था वो किताब है जिसमें शक नहीं है। तो इधर ज़ालिका का हाज़ा वाला माना क्यों करते हैं? उसकी वजह बयान अज़मत है। उस्ताद दिल मुकर्रम तशरीफ लाएं, यहाँ मौजूद हो हजरत उस्ताद जी गोमन साहब, और ऐलान करने वाला कहे वो शख्सियत आपके सामने आई है जो पूरी दुनिया में इस्लाम की दावत लेकर चल रही है। वो क्यों कहा? ये कहे बयान अज़मत के लिए, ये को वो कहते हैं, वो को ये कह देते हैं, तो आपको लुगत की बात भी तो कुछ समझनी चाहिए थी। कहते हैं नमाजी अत्तहियात में कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, तो अय्युहन नबिय्यु ये तो खिताब है और करीबी के लिए कहा गया। मैं खिताब का एक जवाब पहले दे चुका हूँ। अस्सलामु अलैकुम कहते हैं कि जब तक उस तक बात जाएगी तो पहुंच जाएगी, ये भी ऐसे है। और दूसरी ये बात है, ये हिकायतन कहते हैं। हिकायतन कहने का मतलब क्या है? अल्लाह की बात को हम अपनी जुबान में नकल करते हैं। किसी की बात को किसी जुबान में नकल कर दिया जाए तो ये गुस्ताखी, ये हाज़िर नाज़िर होने की दलील नहीं होती। जैसे हम बयान करते वक्त कहते हैं साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, तो या रसूल अल्लाह का माना हाज़िर नाज़िर हम नहीं करते, इसका माना बयान हिकायत करते हैं। और हिकायत को हिकायत में बयान किया जाता है, उसको बदला नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुरान करीम का है, लफ्ज है, आयत है। इसके पीछे हुरूफ जारा में से 17 हरूफ में कोई हर्फ लेकर आए, इस पर जर नहीं आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह ठहरा गया। हदीस पाक में नहीं है तिरमिज़ी के अंदर, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर व उमर यस्तफ्तिहूनल क़िराअत बिलहम्दुलिल्लाह, बिलहम्दुलिल्लाह कहे नहीं कहते। क्यों कहते? इसके पीछे हुरूफ जर आएंगे तो ये एराब हिकाई है, वही रहेगा जो पहले था। तो हिकायत तो नहीं बदली जाती, उसको उन्हीं लफ्जों में बयान किया जाता है। अल्लाह ने फरमाया था अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, हम वही लफ्ज बयान करते हैं, इससे हुजूर को खिताब नहीं करते। बिला तशबीह और मिसाल एक बात कर रहा हूं, जैसे कुरान करीम में या फिरौन मसबूरा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन कहा था फिरौन तेरे बर्बादी के दिन आ गए। तो जब हम नमाज में तिलावत के अंदर या तरावी के अंदर कहते हैं या फिरौन मसबूरा, तो फिरौन हाज़िर नाज़िर हो जाता है। आपको या से किसने ये शुबा डाल दिया है कि हाज़िर नाज़िर होता है? जनाब मोहतरम थोड़ा बहुत समझ लिया करें, ये ऐसी बात नहीं है। हमारा तो दुरूद शरीफ के लिए अकीदा है, यहाँ से पढ़ेंगे फरिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक लेकर चले जाएंगे। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु का ये मसला भी यहाँ पर फाइनल हो जाएगा। कहते हैं एक बात है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जो है ना क्या कहते हैं वो है कलमा है, और इस कलमा तैयबा में ये बात मौजूद है। क्या बात मौजूद है? कलमा तैयबा में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई खुदा नहीं है और हुज़ूर पाक अलैहि सलाम अल्लाह के रसूल हैं। कहते हैं हर जगह मौजूद हैं। तो लफ्ज हैं से उर्दू के लफ्ज से अकीदा बना लिया। जनाब मन, ये उर्दू तो हिंदुस्तानियों के दौर पे बनी है, तुम्हारे अकीदे पे हिंदुस्तानियों के दौर में बने हैं, लफ्ज हैं से लेकर आए हैं। चलो अगर यही बात है तो मैं इसका जवाब भी देता हूँ। हजरत उस्ताद जी फरमाते हैं काबा किबला है या नहीं है?
काबा किबला है, इधर भी है, कहते हैं नहीं, किबला काबा वहां है, किबला यहां से है, हुजूर वहां है, रिसालत यहीं से है। और दूसरा जवाब, वजारत और सदारत ये ओहदे हैं, तो जहां ओहदा होगा वहां ओहदेदार का होना जरूरी नहीं है। वजीर आला पंजाब ये वजीर आला है, तो जहां तक इसकी वजारत है वहां वजीर का होना जरूरी नहीं है। सदर है हमारा, नाम ही किसी को पता नहीं आजकल आता है नहीं आता, क्या नाम है? ममनून हुसैन, माशाअल्लाह। ठीक है, आपने सदर का नाम आपके नाम के मुस्तहिक है। तो इस पर जो है ना क्या कहते हैं, वो जहां पर सदर होगा वहां पर भी सदारत है, और जहां तक सदारत रहेगी वहां पर खुद उसका होना मौजूद नहीं है। ये ओहदे के लिए ओहदेदार का होना मौजूद नहीं होता। आपने कहां से ले लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रसूल हैं? अगर यही बात है तो किसी जैद का अब्बू अब्दुल गफ्फार गया हुआ हो दुबई और वो पूछे अब्दुल गफ्फार आपके कौन हैं, जैद कहेगा अब्बू हैं, तो इसका क्या माना है? इसकी अम्मा जान के पास घर में मौजूद है का क्या मतलब है? वो कहेगा अब्बू की जान वही है, उसकी अबुव्वत यहीं तक है। ऐसे समझो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम रसूल हैं, हुजूर वही हैं, रिसालत यहां से है। अल्लाह आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।